First of all, I would like to welcome all the students and mentors and whoever participated in the internship program. Um, it's uh, it's a really wonderful initiative from AMP and IndiaZakat.com that can really get. So I'll share my screen and then we will see the agenda for today. Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Indeed, Allah will never change the condition of people until they change what is within themselves. This is the ayah mafhum of a Quran ayah. And for that reason, for that exact thing, we are all here, and we are inshallah. We will try to strive towards the change to change the condition of Muslims, what we have presently in our community. The if you say the education, employment, unemployment, there are so many people, those who are underprivileged. We are here to change that. We are here to help as many people as we can, inshallah, through various initiatives. One of them is IndiaZakat.com. So IndiaZakat.com is all about. We will have an introduction session about IndiaZakat.com first, then to brief about the agenda for today. Inshallah, as we go through the IndiaZakat.com, we understand about it first. Then we will move on to today's session on what exactly the internship program is and how we are going to manage that. And after that, we will have a discussion about various. I mean, we will have an interaction session, and then we will have question and answer sessions if there is any. Then we can finally close it. So to begin with, I will call Razak Bhai to please introduce about a little about IndiaZakat.com. Then we can proceed. Razak Bhai. Yeah, Jazakallah. Thank you, Furkan bhai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome all to the session on internship for indiazakat.com. फुरकान भाई ने बहुत अच्छी एक आयत से शुरुआत की कि जिसका बारे में उन्होंने जो बताया हमें, वो इसका करक्स है बेसिकली कि वो कौम का कुछ नहीं हो सकता है जिसने खुद के बारे में नहीं सोचा. अगर हमारी कौम के बारे में हम जानते हैं, हम समझते हैं कि इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या चीज हो सकती है, कैसा हो सकती है, तो हम में से ही किसी को उठ के इसके बारे में काम करना होगा. विद दैट इंटेंशन, अल्हम्दुलिल्लाह, I'll just cover a small part about AMP so that we understand what is AMP and then we'll come to indiazakat.com. तो with this intention in mind के कम्युनिटी को अगर जरूरत है तो हम जो पढ़े लिखे लोग हैं, हम सब जानते हैं हमारी कम्युनिटी में सिर्फ 5% लोग ग्रेजुएट है. तो हम जितने भी लोग ये कॉन में बैठे हैं इस टाइम पे, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर पार्ट ऑफ दैट 5%. तो ये 5% की जिम्मेदारी होती है कि बाकी के 95% के लिए हम लोग किस तरह फलाह का काम किया जाए ताकि वो 95% लोग भी हमारे तरह बन जाए और ये 5% इंशाअल्लाह ग्रो होता जाए. विद दैट इंटेंशन इन माइंड एएमपी की शुरुआत की गई थी दिसंबर 2007 में. 4 educated Muslim youth came together and thought करके let's do something for the community. क्या कम्युनिटी के लिए कुछ करने के लिए, अपनी कौम के लिए कुछ करने के लिए क्या सिर्फ बिजनेसमैन की जिम्मेदारी है, क्या पॉलिटिशियन की जिम्मेदारी है, क्या हम सब यूथ की भी जिम्मेदारी है, हम जो पढ़े लिखे लोग हैं क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है? With that intention in mind, this project was started called AMP, Association of Muslim Professional. The idea was क्या हम हमारा एजुकेशन, क्या हम हमारा एक्सपीरियंस लेके लोगों की फलाह के लिए, लोगों के लिए काम कर सकते हैं, क्या हम हमारी कम्युनिटी और हमारी कंट्री दोनों के लिए एक साथ एक मकसद लेके काम कर सकते हैं. तो इसी तरह एएमपी की शुरुआत हुई थी 4 लोगों से. आज अल्लाह का लाख लाख एहसान है, वो 4 लोगों से ग्रो होके आज एएमपी 2007 दिसंबर से आज हम बैठे हैं मार्च 2021 में. ये जो जर्नी रही है एएमपी की 13 साल की, ये 13 साल में एएमपी ने जो जर्नी तैयार की है वो है 4 लोग की एक सिटी में बैठ के बात कर रहे थे. आज एएमपी अल्हम्दुलिल्लाह 130 लोकेशन पे पूरी कंट्री में है.
130 लोकेशन पे इंडिया में और 20 लोकेशन इंटरनेशनली ग्लोबली, तो 20 कंट्री में आज अल्हम्दुलिल्लाह एएमपी की टीम है. सो दिस इज अ बिग नेटवर्क ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स. जो हम बार बार कहते हैं कि हम में से 5% ग्रेजुएट है, 1% प्रोफेशनल्स है, ये उन लोगों की जमात है. ये वो लोग हैं जो साथ में आए हैं विद द इंटेंशन कि हाँ, हम में कुछ है और हम कुछ करना चाहते हैं. हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास एक्सपीरियंस है, हमारे पास नॉलेज है, और हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है कम्युनिटी डेवलपमेंट में, वो है हम में पैशन है हमारी कम्युनिटी के लिए काम करने के लिए. इस एएमपी की शुरुआत आमिर इदरीसी साहब ने की थी, जो इस कॉल में है, एएमपी प्रेसिडेंट. उनका एक ख्वाब था कि हम अगर जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हैं, हम हमारी कंपनी में एक साथ 20 लोग की टीम मैनेज करते हैं, कुछ लोग 100 लोग की टीम मैनेज करते हैं, और कुछ लोग नेशनल लेवल पे काम करते हैं जो कि पूरी इंडिया को मैनेज करते हैं. अगर हम हमारी कंपनी में इतना अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन काम कर सकते हैं, तो क्या हम सेम चीज हमारी कम्युनिटी में कर सकते हैं? क्या हम हमारे कम्युनिटी में हमारे लोगों के लिए सेम मैजिक जो हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में करते हैं, क्या हम वो कर पाएंगे? आंसर इज यस, इट कैन बी डन, एंड इट हैज बीन प्रूवन इन लास्ट 13 ईयर टाइम. पिछले 13 साल में एएमपी ने करके इम्प्रूव किया है, करके यस, कम्युनिटी के कुछ यूथ लोग अगर मिल जाए तो बहुत बड़ा बर्ताव ला सकता है, बहुत कुछ चेंज लाया जा सकता है. और ये 13 साल में एएमपी ने कोशिश की है एकदम क्लियर फोकस वे में काम किया जाए कि हम भटके ना. हमें भटकाया जाता है कि ये भी चीज करो, वो भी चीज करो, ऐसा भी करो, हमारे हालात बदलते जाते हैं. एकदम फोकस वे में अगर हम काम करेंगे, सिर्फ एक पॉइंट को लेके हम मेहनत करेंगे, इंशाअल्लाह तो रिजल्ट बेटर आता है. इसलिए कहा जाता है ना, आई डोंट फियर पीपल हु डू 10,000 वर्क, आई फियर पीपल हु डू वन वर्क 10,000 टाइम, क्योंकि उसका जो आउटपुट आएगा वो सबसे बेहतरीन होगा. तो एमपी ने एकदम फोकस वे में काम लिया. एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड एम्पावरमेंट, ये तीन चीज के अलावा और किसी चीज में काम नहीं किया. ये लगातार काम चलता रहा, 13 साल से चल रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले टाइम पे भी चलता रहेगा. आज एमपी को 130 सिटी और 20 लोकेशन में करीबन 1 लाख लोग जुड़े हैं, जो मेहनत करके एक साथ जुड़ के इसमें मेहनत कर रहे हैं, इसको आगे बढ़ा रहे हैं. हम चाहेंगे कि पूरी कम्युनिटी अगर मिल जाए, पूरी कम्युनिटी इस हिसाब से सोचने लग जाए. जो पढ़ा लिखा तबका होता है ना, वो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत कम जुड़ता है. उनको एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है कि किस तरह से हम कम्युनिटी के लिए कुछ कर सकेंगे. तो अल्हम्दुलिल्लाह एएमपी बिकम एन अल्टरनेटिव फॉर दोज पीपल जो प्रोफेशनल्स है, जो पढ़े लिखे हैं और कम्युनिटी के लिए कुछ रखने करने का जज्बा जानते हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट एएमपी. आई विल कम बैक टू indiazakat.com. पिछले रमजान में हमने एक इनिशिएटिव लिया. एएमपी 6 साल से एएमपी जकात फंड रन करता था, जिसमें हमारे मेंबर कंट्रीब्यूट करते थे और हम लोग लोगों की फलाह के लिए काम करते थे. लेकिन क्योंकि पेंडेमिक आ गया था, सब कुछ रुक गया था, सब कुछ बंद हो गया था, हमने ये सोचा कि ना, क्या हम अपने ही पैसे से कब तक कम्युनिटी की हेल्प करते रहेंगे? क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जो हम रहे या ना रहे, कम्युनिटी के लिए एक प्लेटफॉर्म रेडी रहेगा और कम्युनिटी उससे फलाह लेती रहेगी. indiazakat.com का कॉन्सेप्चुअलाइजेशन पिछले रमजान में हुआ था. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि एक छोटे दौरान में, एक 15 दिन के टाइम में इसको सोचा गया, इसको कॉन्सेप्चुअलाइज किया गया और इसको अल्हम्दुलिल्लाह लॉन्च भी किया गया. इट्स जस्ट अ स्मॉल बेबी. एक स्टार्टअप जैसा होता है ना, जो फर्स्ट ईयर में स्टार्टअप क्या करता है, स्ट्रगल करता है, अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करता है, उसी तरह से indiazakat.com एक साल पुराना स्टार्टअप है, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि कम्युनिटी के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहां पर आने वाले टाइम पे या आज के टाइम पे कम्युनिटी की कोई भी चैलेंज हो, उसका सोल्यूशन हम उससे ला सकें. जो देने वाले हैं और जो लेने वाले हैं, दोनों अवेलेबल है. आज अगर कोई अच्छा बच्चा, मेरिटोरियस बच्चा आईआईटी में क्वालिफाई होता है और वो फीस नहीं भर पाता है, तो 20 करोड़ लोगों के दिल में चुभता है कि हमारे कम्युनिटी का बच्चा तड़प रहा है. वो सब चाहते हैं उसकी मदद करें. न्यूज में पढ़ते हैं, हर जगह देखते हैं, बट मदद कैसा करें कोई जानता नहीं है, इसको मदद कैसे किया जाए. तो क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए, जिस प्लेटफॉर्म में जहां कहीं इंडिया में कोई जरूरतमंद हो, उसको इस प्लेटफॉर्म से कनेक्ट किया जाए, और पूरे लोग जो मदद करना चाहते हैं, इंशाअल्लाह वो उसकी मदद करने आएंगे. विद दिस इंटेंशन indiazakat.com का लॉन्च किया गया था. अगेन indiazakat.com जब हमने लॉन्च किया, हमने ये क्लियर रखा था कि हम हर चीज नहीं करेंगे. हर आदमी आता है, मेरा ये प्रॉब्लम है, हर आदमी आता है, मेरा ये चीज है, मेरा वो चीज है, वैसा ना करते हुए सिंपल फोकस वे में अगेन हम काम करेंगे. किस चीज में काम करेंगे? तो पहली चीज थी अगेन एजुकेशन,
क्योंकि हम प्रोफेशनल लोग हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, तो हम एजुकेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं। हम सबको मालूम है एजुकेशन किस तरह का चेंज ला जा सकता है कम्युनिटी में। हम सब जानते हैं, हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम लर्नर होंगे, जो पहली कॉम होगी, जो पहली पीढ़ी होगी जो स्कूल कॉलेजेस में गई होगी। तो एजुकेशन हमारा की फोकस एरिया है। तो indiazakat.com में हमने एजुकेशन की कोशिश की है, हमने दूसरी मेडिकल की है, तीसरी हमने लाइवलीहुड की है, चौथी हमने की है रिलीफ वर्क के लिए। तो ये 4 पैरामीटर हमने बनाया है। इसके अलावा बाकी चीजों भी इंशाल्लाह काम करेंगे, लेकिन शुरुआत हमने इससे की थी। अब जो ये जर्नी रही है तकरीबन 1 साल की, अभी रमजान आने वाला है, तो प्री रमजान हमने इसको लॉन्च करने किया था, और आज फिर रमजान आ जाएगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको 1 साल पूरा हो जाएगा। ये 1 साल की जो indiazakat.com की जर्नी है, इसमें हमने तकरीबन 900 बच्चों को, 900 लोगों को हेल्प की है। क्या ये प्लेटफॉर्म नहीं होता तो हम कर पाते थे? आंसर इज वेरी डिफिकल्ट। लेकिन प्लेटफॉर्म है तो 900 को भी कर सकते हैं, 9000 को भी कर सकते हैं, 9 लाख को भी कर सकते हैं। और हमने इस प्लेटफॉर्म के जरिए पे 2 करोड़ 60 लाख रुपए रेस किया है। ये रेस किया का मतलब क्या होता है? उन बच्चों के नाम पे हुआ है और उन बच्चों को मिल गया है। indiazakat.com एज अ प्लेटफॉर्म खुद कुछ लेता देता नहीं है। indiazakat.com को चलाने का जो खर्चा होता है वो कंप्लीटली एएमपी स्पॉन्सर करता है, एएमपी वो खर्च करता है। जो भी पैसा रेज होता है माइनस बैंकिंग चार्जेस, अगर बैंकिंग को चार्जेस होगा, बाकी सारा पैसा बच्चों के अकाउंट में चला जाता है। बच्चों के अकाउंट में मतलब अगर एजुकेशन कॉस्ट है तो उस बच्चे की कॉलेज की फी भरी जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह इन पैंडेमिक टाइम में कम्युनिटी की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, इसीलिए हमने ज्यादा मेहनत की कि टफ टाइम पे ही अच्छे रिजल्ट आते हैं। इसीलिए हमने कोशिश की कि ज्यादा लोगों की मदद की जाए। जो 900 लोगों की मदद की गई है उसमें से बहुत सारे बच्चे थे जो आईआईटी में गए हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो मेडिकल में गए हैं। तो बहुत अच्छा, एक अच्छा काम किया गया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमारी जिम्मेदारी होती है एज ए कम्युनिटी कि इसको आगे कैसा बढ़ाया जाए, इसको नेक्स्ट लेवल पे कैसा लेके जाया जाए, ताकि जो नियत से इसको शुरुआत की थी, इसकी नियत ये नहीं थी कि हम कुछ लोगों की मदद करेंगे। इसकी ये नियत ये थी जो भी जरूरतमंद होगा उसको यहाँ पर लाया जाएगा और हम उसकी मदद करने की कोशिश करेंगे। कहीं पे भी ये कमिटमेंट नहीं था कि हम उसको पैसा देंगे, नहीं, हम पैसा नहीं देंगे। हम इसके कॉस्ट को डोनर तक लेके जाएंगे ताकि डोनर चूज करे उसको किसको डोनेट करना है और उसको हेल्प करना है। विद दिस इंटेंशन indiazakat.com को लॉन्च किया गया था और इसकी मेहनत की गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये कंप्लीटली वॉलंटियर बेस चल रहा है। आज की कॉल में भी आप देखोगे जितने लोग जुड़े हुए हैं आपके लिए, वो भी कंप्लीटली वॉलंटियर है। इसमें फुरकान भाई है जो एएमपी के एसए टीम से है, सऊदी अरब से कर रहे हैं। कंप्लीट ऑनलाइन मैनेजमेंट है, इसमें कहीं पे भी फिजिकल एक्टिविटी कुछ नहीं है, ज्यादातर काम कंप्लीट ऑनलाइन है। तो अलग अलग कंट्री में बैठ के लोग इसकी काम कर रहे हैं। इसमें जईम भाई हैं जो कनाडा में बैठे हुए हैं, इसमें हम सब अलग अलग सिटी में बैठ के काम कर रहे हैं। तो विद दैट इंटेंशन indiazakat.com ने इंटर्नशिप प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था कि पिछले रमजान से ये रमजान में जो लर्निंग हुई है आने वाले साल के लिए उसको हम तैयार करें। और इंटर्नशिप में प्रोजेक्ट में हम क्या करना चाहते हैं, मेरे नेक्स्ट स्पीकर है जो उसको डिटेल में भी आपको बताएंगे कि ये प्रोजेक्ट क्या है, किस तरह से है। मेरा इंटेंशन ये था आपको बता दिया जाए पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन एएमपी क्या है, क्या करता है। दूसरा indiazakat.com जो कि सबसे इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है जिसके लिए हम इंटर्नशिप करने जा रहे हैं, क्या वो वाकई में राइट प्लेटफॉर्म है, हम उसको जुड़ना चाहिए और क्या हम उसमें जुड़ के कम्युनिटी के लिए कुछ बड़ा काम कर सकते हैं। विद दैट इंटेंशन let me complete my speech over here, let me complete my work over here. I'll pass on back to Furkan bhai, and Furkan bhai, back to you. Thank you so much, Razak bhai, for the detailed explanation about the AMP and indiazakat.com. Alhamdulillah, both under AMP, India Zakat is doing amazing works, and all because of the leadership of Ahmed Idrisi Saab and the volunteers which are working tirelessly without, they are just giving the time out of their busy schedules, and Alhamdulillah, it is going in such a wonderful way. Razak bhai has covered almost everything about indiazakat.com, what exactly it is. I just wanted to, before moving on to Shakib bhai, I just wanted to give a brief about some success stories here. If you can see, this is one of the causes which we raised, and it was successful. This was a maybe IIT NIT cause, and it was 2 lakhs, and Alhamdulillah, India Zakat has helped this student. If you take about the healthcare cause, this is one of the healthcare cause where this Murtaza
had a road accident, and then he had to get we wanted to help him, and this is how we supported through indiazakat.com. Then there are relief funds, relief causes where you can see in West Bengal there was cyclone fund, and through indiazakat.com itself it was supported, and more than 2 lakhs was raised for this, and there was many other things about it. Now absolutely everyone is contributing one or the other way, but the internship is a program which is conducted with an aim to not just to support our students experience this wonderful platform and gain so much knowledge, but also to help the community in the best way possible. Our next speaker, Mr. Shakib Chaudhary, can give us in detail about what this program is all about. I will hand over the stage to Shakib Bhai. Shakib Bhai, you can unmute and you can speak. अस्सलाम एवरीवन, बहुत अच्छा लगा सुन के फुरकान भाई ने और रज़ाक भाई ने जैसे बताया कि what all has been done in this platform, and this would have given you a brief background that what was the past and how we tend to go in future. तो थोड़ा सा इस समर इंटर्नशिप पे अगर हम बात करें और इसको हम इंटर्नशिप लेके अगर समझें कि इसके why this was initiated और इसके बेनिफिट्स क्या है, और जब हम बेनिफिट्स की बात करेंगे तो हम बेनिफिट्स को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे. एक बेनिफिट व्हाट इज अ ब्रॉडर बेनिफिट फॉर द कम्युनिटी एंड नीडी पीपल, और दूसरा बेनिफिट है कि व्हाट इज इन फॉर मी, जो कहता है कि मेरा क्या फायदा होगा, व्हाट इज इन फॉर मी, व्हाट विल आई लर्न फ्रॉम दिस इंटर्नशिप, व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट. Because yes, community service is great. If you're helping people, that is great, but it also has to have a benefit. So that is why we try to merge both things and bring up an internship program. That now what do we need to do next? So आपने जो एक brief background history देखा और बहुत सारा आपने सुना है कि lot of this is on online efforts. Now we need to take it to a next level. Next level में क्या है कि हम internships जब launch कर रहे हैं तो हमारे मकसद कुछ बहुत broad based है. सबसे पहला हमारा मकसद ये है कि indiazakat.com का सर्किल ऑफ ट्रस्ट बढ़ाना. ये सर्किल ऑफ ट्रस्ट समझना हमारे लिए क्यों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो इसलिए है कि अगर हमें किसी भी चीज को, कोई भी कॉज, अगर कोई भी हमारे पास फंड के लिए आता है, सबसे पहले व्हाट इज द क्वेश्चन दैट कम्स टू आवर माइंड? द क्वेश्चन दैट कम्स टू आवर माइंड इज इट जेन्युइन और नॉट? भाई क्या ये सही में जरूरतमंद है भी या नहीं है? ये सबसे पहला एक बेसिक सवाल होता है. अब अल्हम्दुलिल्लाह विद अल्लाह's grace, we have been able to reach to a point where people say that use indiazakat.com platform if you have to raise fund. नेक्स्ट स्टेज पे हमें क्या करना है कि हमें मल्टीपल जगहों पे जाके, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हमारे डिस्कशंस हो, इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताना है. और सिर्फ इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताना नहीं है, उसमें ये भी समझाना है कि इस प्लेटफॉर्म ने कैसे लोगों की मदद करी. क्योंकि जब आप एक सक्सेस स्टोरी बताएंगे किसी को, तो उसको समझ में आएगा कि हाँ भाई, अगर मेरे को भी कोई किसी को मदद करना है. फॉर एग्जाम्पल, जो आपने एक IIT का केस देखा, इसमें अगर किसी को मान लीजिए 2 लाख रुपए चाहिए थे फीस के लिए, तो अगर शायद मेरे या किसी के पास आता तो उसको वो इतनी जल्दी से सपोर्ट नहीं कर पाता, लेकिन इस प्लेटफॉर्म की वजह से वो उसको सपोर्ट आया. तो अब हमें वो सर्किल ऑफ ट्रस्ट बढ़ाना है. सर्किल ऑफ ट्रस्ट कैसे बढ़ेगा? हम इसके ऑफलाइन और ऑनलाइन एंगेजमेंट्स करेंगे, जो आमिर भाई अपने जॉब रोल में बात करेंगे. लोगों से जाके बात करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि ये प्लेटफॉर्म क्या है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं. इनकरेज करना पड़ेगा लोगों को कॉज रेज करने के लिए. बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग कॉज रेज करें, क्योंकि हम जो चीज ओन करते हैं, सी इट इज थिंग्स दैट वी ओन आर द थिंग्स दैट वी प्रमोट वेरी पैशनेटली. तो जब हम एज इंटर्न्स कुछ कॉजेज रेज करेंगे या हमारे जान पहचान के लोग कॉज रेज करेंगे, वो अपने आगे सर्कल में बताएंगे कि भाई आई हैव रेज्ड अ कॉज ऑन इंडिया ज़कात, कैन यू हेल्प. स्लोली एंड स्टेडली क्या होगा, द वर्ड विल स्प्रेड. और वर्ड उस जगह स्प्रेड होगा जहां पे हमें स्प्रेड करना जरूरी है, क्योंकि आज की तारीख में भी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पे इंडिया ज़कात के बारे में .com के बारे में मालूम नहीं है. और अगर मालूम भी है तो सबसे पहला उनका सवाल होता है कि कैन वी ट्रस्ट देम. नो डाउट व्हेन यू टेल अबाउट ट्रस्ट, वी कैन शो देम अ कंप्लीट स्केच, जो कि अभी आपने प्रेजेंटेशन में देखा कि ड्यू डिलीजेंस होता है, लेकिन एक 1-to-1 फेस टू फेस इंटरेक्शन की वैल्यू या ऑनलाइन इंटरेक्शन की वैल्यू ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें आप रीइंफोर्स कर सकते हैं थॉट कि यस एवरीथिंग इज देयर, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस कम एंड आस्क मी. नाउ कमिंग, उससे बेनिफिट क्या है कि हमारी कम्युनिटी में अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, चाहे उनका लाइवलीहुड चला गया हो, या उनको कोई कोर्स करना है, या उनको कुछ अपने रोजमर्रा की जिंदगी की चीजों की जद्दोजहद कोई मुश्किल हो रही है मीट करने के लिए, उनको पता नहीं होता कहाँ जाना है. और एक तरफ लोग ऐसे हैं कि जिनके पास पैसा भी है,
उनको मालूम भी है कहाँ हेल्प करना, लेकिन उनको नहीं मालूम कि भाई देना कहाँ है। तो जब हम ये इंफॉर्मेशन लेके जरूरतमंद लोगों की, जो डोनर्स हैं उनके पास जाएंगे, उनको बताएंगे, तो धीरे धीरे और लोग इस प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे एंड वी विल बी एबल टू हेल्प अ लार्जर सेट ऑफ ऑडियंस, जिससे हम कहते हैं हमारी आज की जिंदगी और आखिरत की जिंदगी बेहतर होगी, नो डाउट अबाउट इट। तो ये हमारी कम्युनिटी के लिए क्या इसका फायदा है, ये इंटर्नशिप प्रोग्राम का एक वो है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट दैट व्हाट इज इन फॉर मी, that is fine. So the first thing is that community gets advantage, people will get causes raised, they will get money, they will get support, and the donors will get legitimate causes to help. What is there for the intern? आपके लिए क्या है? Why you should do internship? So irrespective of आप किस course में हैं, किस field में, when you will go in, either you go in your corporate lives, even you go social sector, या अपना एक काम आप शुरू करेंगे, बहुत बेसिक चीज होती है कि क्या हमें काम आता है या नहीं आता। क्योंकि हमारी एजुकेशन सिस्टम का एक ड्रॉबैक ये है कि मोस्ट ऑफ दिस एजुकेशन इज अराउंड थ्योरी। You would have heard about theories, you would have learned about theories, but you would have not implemented it. That is why this platform becomes really important, because here in this platform, you will be working on live projects. And जितना मेरा 15 साल का मैनेजमेंट फील्ड का एक्सपीरियंस है, and even I was from a college where getting an internship was difficult. Leave aside whether I get a paid internship or a free internship. एक कायदे की जगह इंटर्नशिप मिलना एक एवरेज कॉलेज के बच्चे के लिए बहुत ही बड़ा स्ट्रगल होता है। indiazakat.com के थ्रू यू विल गेट इंटर्नशिप्स विच आर फॉर लाइव प्लेटफॉर्म्स। लाइव प्लेटफॉर्म्स का बेनिफिट क्या है? फॉर एग्जाम्पल, कोई ऐसा आदमी है जो सेल्स एंड मार्केटिंग बैकग्राउंड में जाना चाहता है, वो जाके बता सकता है कि मैंने 2 महीने एक लाइव प्रोजेक्ट पे काम करा जिसमें मुझे 50 लोगों से मिलना था, मैं 60 लोगों से मिला, मैंने 10 सेशंस कंडक्ट करे, मैंने उनको प्रोडक्ट के बारे में समझाया, सर्विस के बारे में बताया। जब उनको प्रोडक्ट और सर्विस समझ में आया तो उन लोगों ने कॉज रेज करा, उसके लिए फंड इकट्ठा हुआ, मैंने टेक्नोलॉजी वाइज जाके फंड देखा, डॉक्यूमेंट जाके चेक करा, तो एंड टू एंड मैनेजमेंट करा। So the management involves sales, it involves marketing, it involves business development, it involves operational work, and also a bit of finances. So you will know that whether the cause has been raised, what was the right amount, were the documents in place. So this also will give everyone a big leg up in their careers, whether, as I will repeat again, whether this is a social career, अगर आप जाना चाहते हैं, कोई social organization में जाता है, तो आपसे मांगते हैं ना कि भाई आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है। अब जब हमने तो 2 साल पढ़ा है, हमारा 2 साल 3 साल में तो वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो these kind of projects will be your live work experience where you will be able to show tangible products. Otherwise ज्यादातर जगह इंटर्नशिप्स में क्या होता है, ज्यादातर जगह इंटर्नशिप्स में क्या होगा कि आप जाएंगे, आपको कह देंगे रिसर्च करके ले आइए, उसके आगे पीछे का आपको कोई मालूम नहीं कि भाई व्हाई दिस रिसर्च वाज डन। हियर आपके टेंजिबल बेनिफिट्स होंगे। तो जब आप अपना एक सीवी बनाएंगे, उसके बाद एक आउटकम बनाएंगे, तो आप ये बताएंगे कि आपने एक्टिविटीज क्या करी, उस एक्टिविटीज के लिए आपने क्या क्या चीजें करी, क्योंकि बहुत सारी चीजें तो समझाई जाएंगी, बहुत सारी चीजें ऑन द जॉब करनी पड़ेंगी। आउटकम क्या डिफाइंड था? मान लीजिए आउटकम डिफाइंड था कि 10 कॉज रेज करने हैं और 10 लाख रुपए रेज करने हैं। वर यू एबल टू डू दैट और नॉट? आपके चैलेंजेस क्या फेस हुए, आपको आपकी लर्निंग्स क्या आई? तो इस तरह की चीज जब आप लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, तो व्हेनेवर यू गो इन एनी कंपनी, people who have worked in live projects are given preference of people who have not worked in live projects. Other advantage, the final advantage that I would like to tell about this will give you a lot of confidence. Why this kind of confidence is important? Because this is amongst few projects. और ऐसा मैं आपको बताऊं कि जो हम बहुत हमारी बड़ी कंपनीज होती है, एफएमसीजी कंपनी जैसे कोलगेट पामोलिव, L&T, उसके भी जो स्टूडेंट जो इंटर्नशिप करते हैं वो सारे एलिमेंट्स नहीं करते हैं। यहाँ आप क्या क्या करेंगे, यहाँ आप प्रोजेक्ट कॉस्ट रेज करना सीखेंगे, थोड़ा बहुत आपकी टेक्निक फेमिलियरिटी आएगी, आप जाएंगे सेल्स करेंगे, बिजनेस डेवलपमेंट जो एक चीज कहते हैं, क्या होता है कि आप रीच आउट करेंगे ऑडियंस को, उनको इस कॉज के इसको प्लेटफॉर्म के बारे में बताएंगे, उसके बेनिफिट्स बताएंगे, फिर आप कॉजेज रेज करेंगे। एग्जीक्यूशन, जब डॉक्यूमेंट्स आएंगे किसी कॉज के, तो आप चेक करेंगे वेदर द डॉक्यूमेंट्स आर इन ऑर्डर और नॉट। सो दिस इज ऑपरेशंस, एंड देन बिकॉज फाइनेंस इज इन्वॉल्व, यू विल बी ऑल्सो इन्वॉल्व इन अ बिट ऑफ फाइनेंस। सो ऑल इन ऑल अगर हम 4-5 एलिमेंट्स देखें जो कि एक डे टू डे वर्क किसी भी कंपनी के या किसी भी अपने काम के होते हैं, वो सब आप एक लाइव प्लेटफॉर्म पे करेंगे, which will be a big benefit for you all when you go into your careers irrespective of the field that you choose. So this is all I had to say, and I will now leave it to Furqan bhai to take it further. Thank you so much, Shakib bhai. It was really helpful, and alhamdulillah, you have covered such a wonderful points, and this is really important for students, as this internship can take them to a different level if they participate and they work in a very good manner.
Before proceeding further to our next role, where MP President Amir Idrisi Saab will describe about the job role and everything, I just wanted to introduce this project, internship project lead, who was elected as a lead, Mr. Ammar. He is one of the AMP members who is from Abu Dhabi, UAE, and he is leading this project. He has been selected for this project, Alhamdulillah, and all the interns has to report, not directly, even if not directly, but at least indirectly, he will be in touch with all the interns, and he shall be the one who will be managing the entire process. And in back office, we will all support at the same time. Amar bhai, if you have any Yes. points to be Yes. put, you're most welcome. Sure. सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू to each and everyone in the meeting room. मेरे colleagues, मेरे friends शाकिब साहब, फुरकान भाई, रज़ाक भाई और इंशाल्लाह आमिर साहब भी आगे कहेंगे. मैं अपने आप को ऑनर्ड और लकी मानता हूँ कि मुझे ये चांस मिला है इस इंटर्नशिप मैनेजमेंट को लीड करने के लिए. एंड वी हैव मुझे अब जैसे फुरकान भाई ने कहा आई बीन इलेक्टेड, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मुझे बना के लिटरली एक प्लेटर पे दे दिया है. एंड इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं उसको अपनी पूरी एबिलिटी के बेस्ट तरीके से लेके आगे जा सकूं. वी हैव अ डिटेल्ड KPI प्लान, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, एंड ऑल इन ऑल एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करेंगे, क्योंकि हम सभी का मानना है कि अगर सक्सेसफुल होना है तो प्रोफेशनल होना और रिजल्ट ओरिएंटेड रहना बेहद ज़रूरी है. और अभी के लिए इतना ही. इंशाल्लाह जो भी इंटर्न्स रजिस्टर करेंगे मैं उनके साथ, उनके मेंटर्स के साथ टच में रहूँगा ऑपरेशंस वाइज. एंड इंशाल्लाह जैसे शाकिब भाई ने बहुत डिटेल के अंदर समझाया, हमें इसे एंड टू एंड मैनेजमेंट या स्टार्ट टू फिनिश मैनेजमेंट प्रोसीजर की तरह आगे देखना है. थैंक यू वेरी मच. Inshallah. फुरकान भाई, ओवर टू यू अगेन. Thank you so much, Ammar bhai. Inshallah, we will see a wonderful management from your side, and we are always there to support everyone, inshallah. Next, I would like to call Mr. Amir Idrisi Sahab, who really touches everyone. मतलब उनकी जब स्पीच शुरू होती है तो ऐसा दिल बोलता है कि कंटिन्यू सुनते ही जाना है बस. तो आमिर भाई, ओवर टू यू. जी, जज़ाकल्लाह फुरकान भाई, थैंक यू सो मच. थैंक यू एवरीवन. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन. बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों ने जो है वक्त निकाला आज के इस कॉल के लिए. प्लस स्पेशल थैंक्स टू ऑल आवर इंटर्न्स, दोज हु हैव अप्लाइड फॉर दिस रोल, जिसका हमने जो है पहले ऑन द indiazakat.com प्लेटफॉर्म वी आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, दो वी हैव बीन डूइंग दिस with AMP since last so many years, alhamdulillah, and we have got wonderful experience of working with students, alhamdulillah. इंडिया ज़कात के लिए पहली बार हम लोग करने जा रहे हैं, उसके लिए मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ. बहुत बहुत शुक्रिया. आइडियली मेरे जहन में ये था कि अम्मार भाई विल प्रेजेंट दैट, लेकिन मुझे कल मालूम पड़ा था शायद वो ही विल नॉट बी अवेलेबल इन द कॉल टुडे. सो आई टोल्ड शबनम मैडम दैट आई विल टेक दिस जॉब रोल डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट and I will talk about this. तो माशाल्लाह आप लोगों ने indiazakat.com के बारे में काफी कुछ सुना, AMP के बारे में काफी कुछ सुना. सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है इस पूरे दोनों ऑर्गेनाइजेशन का एंड दी प्रोजेक्ट्स व्हिच दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर रनिंग, कि ये जो है प्योरली वॉलंटरी ड्रिवन जो है ना ऑर्गेनाइजेशंस हैं. सारा काम हमारे वॉलंटियर्स करते हैं. आज के कॉल पे जितने लोग हैं या बैकग्राउंड में जितने लोग काम कर रहे हैं, तकरीबन देयर आर 40 पीपल राइट नाउ हु आर वर्किंग ऑन indiazakat.com. Some of them are into operations, some of them are into social media promotion, some of them are into marketing, branding and awareness creation, some people are into IT development, some people are into finance and accounts management. ये सारे ही लोग जो है ना वॉलंटियर्स हैं माशाल्लाह, और पूरे दुनिया के कोने कोने से दे ऑपरेट. आपने यही देखा फुरकान भाई कमिंग फ्रॉम KSA, then अम्मार भाई फ्रॉम अबू धाबी, शकीब भाई दिल्ली से हैं, रज़ाक भाई मुंबई से हैं, then we have people from Canada, Malaysia, we have people from Switzerland. ये सारी कोर टीम के लोग हैं माशाल्लाह, और ये सब लोग जो हैं कम से कम 15 साल 20 साल 25 साल के एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, और अपने अपने प्रोफेशनल करियर में they are very sound and very they are on very strong positions माशाल्लाह. तो ये एक ऐसी टीम है. सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट ये है कि ऐसे जो है लर्नेड, हाईली क्वालिफाइड एंड हाईली रिसोर्सफुल प्रोफेशनल्स के साथ लाइव काम करने का हम लोगों को मौका मिलेगा. मुझे लगता है ये जो है ना सबसे बड़ा जो है एक बेनिफिट है इस प्रोग्राम का. बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस हैं,
कि कौन इसी मतलब विच बैकग्राउंड पीपल कैन वर्क ऑन दिस इंटर्नशिप प्रोग्राम, तो शकीब भाई ने भी कहा कि एनी स्टूडेंट कैन बिकम पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम if they have basic skills, basic knowledge, basic and the passion to work, so they can work. Sorry. So basic question ये आता है कि मतलब ये कैसे हो सकता है, कौन से स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो इट इज ओपन फॉर ऑल, ठीक है, with the able guidance of the core team and the mentors which we are going to appoint for this internship program. इंशाल्लाह हम लोग ये 2 महीने में काफी कुछ काम कर पाएंगे. Mentors वो हैं, हम लोग for every 10 students we will appoint one mentor from our volunteers, जो हमारे या तो स्टेट हेड होंगे या हमारे एम्बेसडर्स होंगे या हमारी प्रोफेसर्स टीम का हिस्सा होंगे. अगेन वो लोग होंगे जो लोग बहुत सीनियर हैं, इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आप उनके साथ क्लोजली कोऑर्डिनेट करेंगे. हमारे बहुत सारे मेंटोर्स भी आज के कॉल में यहाँ पर मौजूद हैं जो बेसिकली आपके गाइड होंगे. सो फॉर एवरी 10 स्टूडेंट्स एक गाइड होगा. हमारी कोशिश होगी कि वो स्टूडेंट्स को ज्योग्राफिकली जो है ना सबसे जो नियरेस्ट मेंटोर है उसके साथ कनेक्ट किया जाए. For example, if we have interns from Bihar, so they will be connected to our mentor from Bihar, which is Riaz Alam Saab. है ना, he has vast experience, alhamdulillah 15-20 years experience, so he will be managing it from Bihar, say for example. इसी तरह से हर स्टेट में अलग लोग हैं, वो आपको लगातार गाइड करेंगे अपार्ट फ्रॉम द कोर टीम विच वी हैव. अब ये समझना है कि हम लोगों को काम क्या करना है. तो काम में जो है, जो आप लोगों को शायद समझ में आया होगा शाकिब भाई की बात से, कि बेसिकली 2 अलग अलग किस्म का काम है, ऑनलाइन एक्टिविटीज एंड ऑफलाइन एक्टिविटीज, ये दोनों करनी है. इन सम सिनारियोज जहां पर हमारे मेंबर्स जो है वो इंडिया में नहीं है, दे आर आउटसाइड इंडिया, तो वहां पर भी हम लोग वी विल प्लान सम ऑफ द ऑफलाइन एक्टिविटीज फॉर देम. अदरवाइज उनका मेजर पार्ट जो होगा वो ऑनलाइन एक्टिविटीज के जरिए ही करना होगा. ये जो मैं बता रहा था कि जो हमारे एफर्ट्स अब तक रहे हैं, जो तकरीबन 30 से 40 वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं हमारे इस पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए, उसमें से भी जो मेजॉरिटी हिस्सा है वो बैकएंड को मैनेज करता है. जो साकिब भाई ने बताया, प्लेटफॉर्म को अच्छा बनाने के लिए, प्लेटफॉर्म को ट्रस्टवर्दी बनाने के लिए, क्रेडिबल बनाने के लिए, प्लेटफॉर्म के तई लोग जो है अच्छा महसूस करें, अच्छा समझे, वो पूरा काम जो है ना एक ऑपरेशंस की टीम पीछे से मैनेज करती है. तो हमारे ज्यादातर वॉलंटियर्स जो है वो ऑपरेशन टीम का हिस्सा है. इन 40 लोगों में से तकरीबन 8 से 10 लोग ऐसे होंगे जो सोशल मीडिया प्रमोशन के जरिए अवेयरनेस, मार्केटिंग, ब्रांडिंग जो आप कह ले उस पे काम करते हैं. और ये सिर्फ इन लोगों का एफर्ट है, सिर्फ 8 से 10 लोगों का एफर्ट है, और एक ऑर्गेनाइजेशन का एक बैकएंड है पीछे से, जिसकी वजह से पिछले 1 साल में, 1 साल भी अभी पूरा नहीं हुआ है, और इतना जबरदस्त सक्सेस जो है इस पूरे प्लेटफॉर्म को मिला है. उस सक्सेस को समझने के लिए मैं कुछ स्टैट्स आप लोगों को बताता हूँ कि सो फार वी हैव कलेक्टेड मोर देन 2.65 करोड़ रुपीज ऑन दिस प्लेटफॉर्म. किसी भी क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म ने, मैंने आज तक नहीं देखा कि जब लॉन्च हुआ हो और पहले ही साल में इतना जबरदस्त सक्सेस मिला हो. तो ये अल्हम्दुलिल्लाह एएमपी के और आईजेडसी के हिस्से में आया कि लॉन्च वाले ही ईयर में ही जो है हम लोगों ने इतना बड़ा काम किया. ये जो पैसा रेज हुआ है, ये पैसा जो है इट हैज बीन डोनेटेड बाय मोर देन 8,000 पीपल फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब. 8,000 लोगों ने डोनेशन दिया है इन कॉजेस पे. तकरीबन 1,000 कॉजेस को फंड किया गया, किसी को कम किसी को ज्यादा. उसमें से तकरीबन जो है 300 कॉजेस ऐसे होंगे जिनका गोल अचीव हुआ, जिन्होंने जो है जो भी गोल रखा था वो गोल अचीव हुआ. इन सारे कॉजेस में मेजॉरिटी ऑफ द कॉजेस वर ऑफ द फ्रॉम दी एजुकेशन कैटेगरी, यानी जो एजुकेशनल हेल्प चाहिए उसके सबसे ज्यादा कॉजेस थे. तो आप लोग अगर प्लेटफॉर्म पर जाकर देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि किस तरह से इन कॉजेस की मदद की गई. ये जो डोनेशंस आए हैं, दे हैव कम फ्रॉम मोर देन 20 डिफरेंट कंट्रीज, दे हैव कम फ्रॉम मोर देन 600 डिफरेंट सिटीज. तो ये इतना वाइड इसका रीच रहा, और ये जो रीच बनी है, ये जो अवेयरनेस क्रिएट हुआ है, it was done only by say for example 8 to 10 people. मैं ये पॉइंट आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो इतना जबरदस्त सक्सेस रहा है, ये 8-10 लोगों की मेहनतों के जरिए हुआ है. उसमें भी मेजॉरिटी मेहनत जो है वो ऑनलाइन की गई, तो ये काम मौजूद हुआ. हमने ये सोचा कि व्हाई नॉट टू मेक दिस एंटायर प्रोसेस एज एन इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी, जिसमें हमारे साथ जो स्टूडेंट्स कनेक्ट होंगे वो उनको एक ऑर्गेनाइज सेट ऑफ एक्टिविटीज दी जाएगी, और वो इस तरह से एग्जीक्यूट किया जाएगा कि उनके जरिए जो है प्लेटफॉर्म, बेसिक जो थी बॉटम लाइन पे मैं बात कर रहा हूँ, प्लेटफॉर्म की अवेयरनेस बढ़ेगी, प्लेटफॉर्म के बारे में लोगों को मालूम पड़ेगा, है ना. प्लेटफॉर्म का जो सर्कल ऑफ ट्रस्ट जिसकी बात कर रहे हैं शकीब भाई, वो बढ़ेगा. ये कैसे होगा इस पर हम लोग बात करेंगे. बिफोर आई स्टार्ट अगेन विद
द एग्जैक्ट प्रोजेक्ट टॉपिक्स। एक सिंगल बात आप ध्यान में रखिए कि ये बिल्कुल भी जो है ना सेल्स पिच नहीं है। ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो सेल्स के लिए नहीं है, डोनेशन इकट्ठा करने के लिए नहीं है। कहीं पर भी हम लोग आपको ये डिमांड नहीं करेंगे, कहीं पर भी हमारी पिच में ये बात नहीं रहेगी कि आप जो है डोनेशन दीजिए। ये डोनेशन मांगने के लिए जो है ना ये पूरा इंटर्नशिप प्रोग्राम प्लान नहीं किया गया। जो आमतौर पे हम लोग देखते हैं कि आप किसी बैंक की इंटर्नशिप में जाएं, है ना, किसी बड़ी कंपनी की इंटर्नशिप में जाएं, तो बेसिकली आपको सेल्स जॉब पे लगाया जाता है कि जाइए आप सिम कार्ड बेचिए, जाइए आप क्रेडिट कार्ड बेचिए। तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम चाहते हैं कि इस प्लेटफॉर्म के बारे में लोगों को मालूम पड़े और लोग इस प्लेटफॉर्म का फायदा उठाएं। प्लेटफॉर्म हैज नथिंग टू गेट बेनिफिट फ्रॉम ऑल दीज एफर्ट्स। इनफैक्ट प्लेटफॉर्म को चलाने के लिए हम लोग अपनी जो है ना ब्लड एंड स्वेट सब लगा रहे हैं, पैसा हम लोग हमारा लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि पूरी कम्युनिटी इसको इस्तेमाल करे, स्पेशली द स्टूडेंट कम्युनिटी अक्रॉस इंडिया शुड यूज दिस प्लेटफॉर्म। दिस ईयर वी हैव हेल्प्ड मोर देन 200 and 300 स्टूडेंट्स completely and around 700 students partially. So ये तादाद जो है ना into 10x होनी चाहिए नेक्स्ट ईयर। ये हमारा ख्वाब है। इस ख्वाब को पूरा करने के लिए इन बच्चों तक हमको पहुंचना पड़ेगा कि भाई कम एंड यूज दिस प्लेटफॉर्म। indiazakat.com is as good as Facebook for example. फेसबुक लोगों ने बनाया, बनाने वालों ने उसको पूरी दुनिया इस्तेमाल कर रही है। ट्विटर लोगों ने बनाया, पूरी दुनिया इस्तेमाल कर रही है। इसी तरह से ये प्लेटफॉर्म है। अब वो उनके लिए, उनके पास बहुत बजट होता है, बहुत रिसोर्सेज होते हैं लोगों तक पहुंचाने के लिए। हमारे पास ना वो बजट है ना वो रिसोर्सेज हैं, है ना, कि हम इसको जो है बहुत सारा पैसा खर्च करके इसके पीछे जो है ना इसको लोगों तक पहुंचा पाए। तो हमने ऑर्गेनिक मेथड इस्तेमाल किया है। वी विल नीड वेरी वेरी हाई काइंड ऑफ डेडिकेशन एंड सिंसियरिटी ऑफ ऑल द इंटर्न्स जो हम जो है ना इसमें काम करेंगे। जरा भी जो है ना इसमें वी डोंट वांट टू मेक इट अ लूज वर्क काइंड ऑफ थिंग। तो आपसे सबसे पहली डिमांड हमारी ये रहेगी कि बी वेरी वेरी सिंसियर ऑन दिस प्रोजेक्ट आइटम्स। बिल्कुल ये कंसीडर मत करिएगा कि कहीं से कोई बात रह गई चल जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। हम लोग हमारे बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिसोर्सेज को साथ में लगा रहे हैं, चाहे वो कोर टीम का हिस्सा हो, चाहे वो हमारे गाइड्स हो। तो हम आपकी तरफ से बहुत सिंसियर एफर्ट्स चाहते हैं। गलतियां, मिस्टेक, लर्निंग सब होती है, उसमें हम सब लोग हेल्प करेंगे, लेकिन सिंसियरिटी में हमारे कोई क्वेश्चन मतलब we don't want to have any kind of doubt on that, है ना। सो उस बात का ध्यान रखिएगा। सबसे पहला काम जो है हमने 7 से 8 अलग अलग प्रोजेक्ट्स इसमें डिफाइन किए हैं। सो 2-3 प्रोजेक्ट्स को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा और बाकी सारों को जो है थोड़ा सा क्विकली एक्सप्लेन करूंगा, सो दैट यू अंडरस्टैंड द बेसिक क्रक्स ऑफ द एंटायर प्रोग्राम। सबसे पहला प्रोग्राम जो हमने लिखा है, जो आप हमारी स्क्रीन पे मेरी देख सकते हो, आई विल मेक दिस बोल्ड, कि व्हिच इज ऑनलाइन मार्केटिंग एंड प्रमोशन। हम लोग बहुत डिजिटल मार्केटिंग की बात सुनते हैं, तो अगेन यूजिंग द लाइव प्रोडक्ट, यूजिंग द लाइव केसेस टू मेक टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज द ऑनलाइन मार्केटिंग एंड प्रमोशन। ऑनलाइन मार्केटिंग एंड प्रमोशन में जो है ना, एक होता है कि आप पेड प्रमोशंस करते हैं, तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पेड प्रमोशंस हियर, वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑर्गेनिक ग्रोथ, यानी किसी चीज को ऑर्गेनिकली किस तरह लोगों तक पहुंचाया जाए, उस पर हम लोगों को काम करना है। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली सोशल मीडिया एंड डिजिटल मार्केटिंग फॉर ब्रांड प्रमोशन एंड अवेयरनेस। तो सबसे पहला काम आपको ये करना होगा, हम लोग आपको जो है ना सारी प्रोजेक्ट में बेसिकली जो आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस तरह से जो है ना एक लिस्ट बना कर देंगे कि वो प्रोजेक्ट आइटम क्या है, उसमें क्या क्या एक्टिविटीज करनी है, हर एक्टिविटी के अंदर जो डिटेल टास्क लिस्ट क्या होने वाली है, वी विल गिव यू दैट। अम्मार भाई एंड टीम विल बी कोऑर्डिनेटिंग विथ यू विथ एवरी स्टेप इंशाल्लाह। और उस टास्क है ना, तो ये सब वो लोग बताते रहेंगे। ये शीट आपके साथ शेयर की जाएगी, उसको करने के लिए व्हाट डिटेल्स आर रिक्वायर्ड वो आपको शेयर किया जाएगा, और उसकी फ्रीक्वेंसी आपके साथ शेयर की जाएगी। भाई ये एक काम है जिसको डेली करना है, ये एक काम है ऑल्टरनेट डे करना है, ये एक काम है वीकली करना है, ये एक काम है ओकेजनली करना है। इस तरह से आपको पूरी डिटेल्स जो है, जिस तरह कॉर्पोरेट में जॉब रोल डॉक्यूमेंट होता है, वो आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। तो सबसे पहली प्री रिक्विजिट ये है कि आप सब कुछ, आप लोग मिलके जो है, आप सब लोग जो है एएमपी के जितने सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, फ्रॉम ट्विटर टू लिंक्डइन टू फेसबुक टू इंस्टाग्राम एंड एवरीवेयर एल्स, फॉलो दैट so that you understand what exactly the organization itself is promoting and posting। तो ये काम करें। उसके बाद जो दूसरा काम हमारा होगा, हम लोग जो अगर say for example if we are there for 60 days in internship program, तो every day we will do a promotion of one item from indiazakat.com, either it will be a cause और इट विल बी अ ब्रांड प्रमोशन। तो हमने उसको यूं किया है कि एक दिन आप कोई एक कॉज को लेंगे और उसको प्रमोट करेंगे, और दूसरे दिन आप जो है प्लेटफॉर्म को प्रमोट करेंगे। जब आप कॉज को प्रमोट कर रहे होंगे, तब आप जो है बेसिकली
आप खुद से एक कॉज सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर यू कैन आस्क योर मेंटर एंड गाइड, ही विल हेल्प यू सिलेक्टिंग द कॉज फ्रॉम द अवेलेबल लिस्ट ऑफ कॉजेज ऑन द प्लेटफॉर्म। उसको फिर आपको प्रमोट करना है। कैसे करना है, आई विल कम टू दैट पॉइंट। आई होप आई एम क्लियर कि पहले एक दिन आपको कॉज को प्रमोट करना है, दूसरे दिन उसके नेक्स्ट डे आप ये कर सकते हैं कि आप जो है प्लेटफॉर्म प्रमोशन पे ध्यान दें। यानी व्हाट इज प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म के बारे में लोगों कैसे, उसका जो रिलेटेड मटेरियल होगा, क्रिएटिव्स है, टेक्स्ट है, that our team will provide you। ठीक है, तो every alternate day you will get at least one creative or one text item or one video, one graphics, right, जो वो आप लोगों को लोगों तक शेयर करनी है। आई होप दिस इज क्लियर। उसके बाद जो है इसका प्रमोशन, जो IZC की इवेंट्स होती हैं, जो हैपनिंग्स होती हैं, उसका प्रमोशन करना। IZC के अपने जो है चैनल से जो अनाउंसमेंट्स होते हैं उसको लोगों तक पहुंचाना। जैसे फॉर एग्जांपल नेक्स्ट वीक on 3rd and 4th April, we are doing online virtual online global conference माशाल्लाह, जिसमें बड़े बड़े स्पीकर्स पूरे वर्ल्ड से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उसको प्रमोट करना है। वी आर डूइंग ऐसे कॉम्पिटिशन, उसको प्रमोट करना है। खुद इस इंटर्नशिप प्रोग्राम को प्रमोट करना है। वी आर प्लानिंग अ क्विज कॉम्पिटिशन, उसको यू कैन प्रमोट। वी आर प्लानिंग अ क्वेश्चन आंसर पैनल ऑफ उलेमा इकराम, उसको प्रमोट करना है। तो इस तरह IZC रमजान वेलकम प्रमोशन होगा, वो करना है, राइट। रमजान में कुछ नई चीजें होंगी, उसको प्रमोट करना है। सो दीज आर द थिंग्स जो IZC के प्रमोशन में है। तो ये प्रमोशन की मैं बात कर रहा हूँ, ये प्रमोशन होगा कैसे? सो बेसिकली ये पूरा प्रमोशन कहाँ होगा? इट विल हैपन ऑन फेसबुक, सबसे नंबर 1, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, है ना। इसके बाद आप उसको सोशल मीडिया, व्हाट्सएप को और टेलीग्राम को, जो दूसरे मैसेजिंग एप्लीकेशन है उसको यू कैन काउंट ऑन देम। हम लोग बेसिकली इतना यूज करते हैं बिकॉज हम लोग थोड़ी सी पुरानी जनरेशन के, बट आजकल के स्टूडेंट्स जो है मुझे लगता है कि इससे भी ज्यादा प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करते होंगे। तो यूजिंग दोस प्लेटफॉर्म इन कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट और अबाउट द प्लेटफॉर्म विल बी the biggest objective of this project, this activity, जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं। इस पे कैसे प्रमोट किया जाए? We will again share you one document, जो मैं अगर कोशिश करूं आपको दिखाने की, तो we have got this document, आपको ये हम शेयर करेंगे इंशाल्लाह कि how to promote, प्रमोशन मतलब क्या, हम लोगों को करना क्या है। तो मैं एक मिसाल के तौर पे एक दो चीजें लिख, ये आप पढ़ लीजिएगा, आपके साथ शेयर किए जाएंगे। Say for example, if you have to promote something on Facebook, तो आपको करना क्या है? That I will show you on my screen। आप ये देखते होंगे। तो एक क्रिएटिव, एक टेक्स्ट जो है, आप सबसे पहले उसको अपनी टाइमलाइन पर पोस्ट करें, और उसके बाद जो है आप कुछ ग्रुप्स ज्वाइन करें, है ना। फेसबुक पे बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, स्पेशली फोकसिंग ऑन मुस्लिम्स, ऑन इस्लाम, फॉर एग्जांपल ऑन कुरान, सुन्ना, है ना, ऑन फोकसिंग ऑन, जैसे फॉर एग्जांपल आप इंदौर के हैं तो देयर मस्ट बी अ ग्रुप कॉल्ड एज इंदौर मुस्लिम्स फॉर एग्जांपल। तो ऐसे ग्रुप्स है। आप AMU के हैं तो AMU के ग्रुप है, जामिया के हैं तो जामिया का ग्रुप है। तो देयर आर n नंबर ऑफ थिंग्स, ट्राई टू फाइंड आउट सच ग्रुप्स एंड पोस्ट इट in those groups as well and post it on your timeline as well। once you start doing this, फिर इसका awareness बढ़ेगा, लोगों तक ये बात कहीं ना कहीं पहुंचेगी। उसी तरह से we have written steps for LinkedIn, Twitter and everything। तो ये डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर किया जाएगा, और आपको डेली जो है for at least for an hour you'll have to spend your time on this activity, कि जिसके जरिए हम लोग ये ऑनलाइन प्रमोशन करेंगे। I hope this is clear। कुछ रहेगा तो we can discuss that in question answer session। Just a minute, I'll open that sheet again। After this, एक बहुत important जो point इसमें रहेगा वो ये रहेगा कि हम लोगों को एक कोशिश करनी है हर इंटर्न को कि एक वर्चुअल सेशन जो है वीकली कंडक्ट करेंगे। जिस तरह आज हम ये सेशन कंडक्ट कर रहे हैं, उसी तरह आप एक छोटा सा जूम सेशन ऑर्गेनाइज करेंगे, और उसको जो है उसमें अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करेंगे, उसमें अपने जानने वालों को इनवाइट करेंगे, है ना। उसमें जिन लोगों को आप बुला सकते हो, जिनसे आपने हफ्ते भर में इंटरैक्ट किया है, उनको हम लोग बुलाकर वी विल गिव देम अ बेसिक IZC इंट्रोडक्शन। ठीक है, पहले दूसरे इंट्रोडक्शन में यू मे टेक अ हेल्प फ्रॉम IZC कोर टीम और फ्रॉम योर मेंटोर्स, जो हम आपको असाइन करेंगे। उसके बाद आपको खुद करना है, तो ये आपकी खुद की प्रेजेंटेशन स्किल्स, खुद की जो है ना इंटरपर्सनल स्किल्स को आगे बढ़ाने का बहुत अच्छा मौका रहेगा। सो दिस इज दिस एक्टिविटी। आई होप दिस इज क्लियर। इसमें जो है हम लोग एक्टिविटीज जो है वो ऐड करते हुए जाएंगे, टास्क लिस्ट बनाते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, और इस तरह से इन चीजों को आगे बढ़ाएंगे। दूसरे पॉइंट पर मैं चलता हूं। दूसरा पॉइंट जो है वो हमारा, ये जो हुआ आपका पहला वाला प्रमोशन, ये तो आपका जो खुद का सर्कल है उसको इन्फ्लुएंस करेगा।
है ना, जो आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज हैं, रिलेटिव्स हैं, उन तक ये बात पहुंचेगी। अब हम लोग जाएंगे कि हम लोग नए लोगों से कैसे मिलें, उनसे राब्ता कैसे करें, समाज में, कम्युनिटी में, सोसाइटी में जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो लोग थॉट लीडर्स हैं, जो लोग सोशल लीडर्स हैं, उनको कैसे प्रोग्राम के साथ, प्रोडक्ट के साथ कनेक्ट करें, वो हमारा दूसरा काम है। तो हमने दूसरा काम जो लिखा हुआ है वह है एनजीओ कनेक्ट का, कि जो हमारी सिटी में, ये सारा काम हम लोगों को सिटी बेस्ड करना है। जो इंटर्न जिस सिटी का होगा उसको उस सिटी में काम करना है, चाहे आप पूरे इंडिया में जहां रहते हो, जहां उस वक्त होंगे, उस सिटी में आपको ये काम करना है, उसका ख्याल रखना है। तो सबसे पहली बात ये है कि हमने देखिए टॉक टू एटलीस्ट 10 एनजीओज एंड सोशल लीडर्स ऑफ योर सिटी इन अ वीक, मतलब एक गिवन वीक में आपको अपने शहर के 10 सोशल लीडर्स या 10 ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर उनको इंडिया ज़कात का प्रेजेंटेशन देना है। दिस इज वन एक्टिविटी। आप ये समझिए कि इफ यू आर फ्रॉम दी, जैसे जो बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस होती है, जैसे टिस है, IIPS है, या दूसरे इस तरह से जो रिसर्च के डोमेन में बहुत बड़ा नाम रखने वाली जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप में जो सबसे बड़ा काम मिलता है वो ये मिलता है। यानी जो इस तरह का रिसर्च करना होता है ना, लोगों से मिलना, उनसे बात करना, उनकी प्रॉब्लम्स को समझना, उनसे ग्रास्प करना चीजों को, तो मुझे लगता है इससे बड़ी लर्निंग जो है दुनिया की किसी एक्टिविटी में नहीं है। आप जब ये करेंगे देन यू विल अंडरस्टैंड एंड रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस एंटायर एक्टिविटी। तो जो ये हम लोगों को बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर उनसे बात करनी है और उनको IZC का प्रेजेंटेशन देना है। उसमें ये कोशिश करनी है कि उनके जरिए जो है ना, देन वी अगेन ऑर्गेनाइज वर्चुअल सेशन या ऑनलाइन मीटिंग या ऑफलाइन मीटिंग। उसमें से कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो आपके लिए 8, 10, 15 लोगों को, 20 लोगों को बुला सकते हो। तो विथ हेल्प ऑफ देम यू कैन इनवाइट पीपल एंड हैव दिस काइंड ऑफ सेशन, दैट विल बी योर एक्टिविटी। उसमें से बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होंगी जो लॉन्ग टर्म में हमारे साथ आ सकती है, तो उनको ये कहना, दूसरा काम एक्टिविटी ये होगी कि यू शुड बिकम ऑफिशियल पार्टनर विथ AMP। ये पार्टनर्स हमारे क्या होते हैं, उसका डिटेल डॉक्यूमेंट आपको शेयर किया जाएगा कि हमारे पार्टनर्स हमारे साथ जुड़ के क्या करते हैं। दे रेस कॉजेज, दे प्रमोट कॉजेज, दे डू बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, ड्यू डिलिजेंस प्रोग्राम्स, ये सारे काम जो है हमारी जो पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस होती है वो ये काम करती हैं। तो वो डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर किया जाएगा, आपको वो उनको बताना है। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ऑर्गेनाइजेशंस को बताने की, वो ये है कि किस तरह आप इस प्लेटफॉर्म का फायदा उठा सकते हैं, indiazakat.com का। आज भी हमारे पास बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं, those who come and raise their causes and we help them to promote their causes, they also promote, and अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए जो रिक्वायर्ड फंड है वो पूरा होता है। अभी आप देखें तो एक स्कूल के लिए बस लेनी है फॉर एग्जांपल, उसका एक कॉस्ट चल रहा है इंडिया ज़कात पे। 100 लड़कियों को एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एजुकेशन देना चाहती है, उनका कॉस्ट चल रहा है। एक जगह स्कूल, कॉलेज, स्कूल एंड मदरसा एक साथ बनने जा रहा है, उनका कॉस्ट शुरू हुआ है। इस तरीके से एक जगह जो है एक संस्था है जो तकरीबन 50 लेडीज को जो है सिलाई मशीन देना चाहती है, उनका कॉस्ट चल रहा है। इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस के बहुत सारे कॉजेज अभी भी चल रहे हैं। हम चाहते हैं कि हर शहर की ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से कॉजेज बनाए। कॉजेज क्या होंगे, कैसे होंगे, वो पूरा इंडिया ज़कात के प्रोसेस के थ्रू ही होगा। हम जिस डोमेन में काम कर रहे हैं उसी में होगा। कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी और काम के लिए शायद आना चाहे तो हम शायद मना कर दें उसको, लेकिन अगर हमारी कैटेगरी, हमारी क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं, सो वी विल टेक अप दोस कॉजेज। So this is how you have to connect the NGOs of your city. तो उसमें टारगेट होगा कि हर वीक 10 एक लोगों से बात करनी है, और पूरे पीरियड में, पूरे इंटर्नशिप के पीरियड में, से फॉर एग्जांपल वी आर गोइंग टू हैव 8 वीक्स, सो वी विल से दैट कि एटलीस्ट 20 ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम लोगों को ऑफिशियली टाई अप करना है। अगेन इससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो हम आप सबको प्रेजेंट करेंगे, हाउ टू डू प्रेजेंटेशन ये सब बताएंगे। पहले दूसरे प्रेजेंटेशन में यू मे टेक हेल्प ऑफ योर मेंटर्स एंड द कोर टीम, देन यू विल हैव टू मूव फॉरवर्ड and handle it independently, inshallah. And I'm very sure that this talented students like all of you, you can easily do this, inshallah. On a similar pattern, we have to connect institutions in our city. देखिए मैंने बताया ये पूरा प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा फोकस इज ऑन एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशनल सपोर्ट एंड हेल्प प्रोवाइड करना ये इस पूरे प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा काम है, और उसको हमारे पास सक्सेस रिकॉर्ड्स भी हैं। आप जाके देखिए कितने सारे सक्सेसफुल कॉजेज आपको मिलेंगे प्लेटफॉर्म पे। तो ये चीज जो है वो हर इंस्टीट्यूशन को मालूम पड़े, वहां के HODs को मालूम पड़े, टीचर्स को मालूम पड़े, प्रिंसिपल्स को मालूम पड़े, वहां स्टूडेंट्स को भी मालूम पड़े फॉर एग्जांपल। तो वो हम लोगों को लोगों से मिलकर, इंस्टीट्यूशन से मिलकर वहां इस बात को बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि सी दिस इज द प्लेटफॉर्म एंड यूज दिस प्लेटफॉर्म फॉर योर ओन स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह, ठीक है। उसके बाद जो है एक बड़ा जो है सेगमेंट है वो है मस्जिद का, उलेमा का, और
मस्जिद से जुड़े हुए लोगों का। हमें लगता है कि कम्युनिटी जो है अगर 100% कहीं कनेक्टेड है तो वो मस्जिद से। तो हम लोगों को ये करना है कि हम लोग वहाँ के जो इमाम साहब हैं, उलमा हैं, मस्जिद कमेटी है, उनसे मिलके उनको भी जो है IZC के बारे में बताएं, व्हाट इज द प्लेटफॉर्म एंड हाउ दे कैन हेल्प। सबसे बड़ा एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि हम लोगों ने जितनी स्कॉलरशिप एप्लीकेशन मंगवाई थी उसमें जो है ना, वी हैड वन वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन दैट आप जिस मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं या आपकी जो मोहल्ले की मस्जिद है उसके जो इमाम साहब है उनका नाम और नंबर दीजिए, हम आपका रेफरेंस कॉलिंग वहां करेंगे, आपके बारे में जानकारी वहां से लेंगे। तो ये जो हमने किया है, हम चाहते हैं कि हमारा यूथ जो है वो मस्जिद से दूर ना हो बल्कि मस्जिद से कनेक्टेड हो, उलमा से दूर ना हो उनसे कनेक्टेड हो। ठीक है, ये उनको बताना कि हजरत मौलाना साहब जो भी हैं, आप जो है अपने जो मोहल्ले के जो लोग हैं, पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, गरीब फैमिलीज हैं, उनके हालात किस तरह सुधार सकते हैं। अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर काम करना शुरू करें तो आहिस्ते आहिस्ते आप खुद जो है ना, आपको किसी दूसरे की हेल्प लेने की जरूरत नहीं होगी और आप जो है बहुत सारे लोगों की मदद कर पाएंगे। मस्जिद कमेटी को ये समझाना होगा। इसमें हम लोगों को फोकस ये करना है, शायद हर मस्जिद, हर मौलाना साहब समझ ना पाए इस बात को, तो हर शहर में कुछ मसाजिद इस तरह से होती हैं जहां खास तौर पे जो वहाँ का ऑडियंस है, जो वहाँ के मुक्तदी आप बोल सकते हैं, वो जो मुक्तदी हैं वो काफी पढ़े लिखे होते हैं। आपसे फॉर एग्जांपल इफ यू आर फ्रॉम हैदराबाद तो अल्टीमेटली जुबली हिल्स है, समझ लीजिए, तो जुबली हिल का जो एरिया होगा, जाहिर सी बात है वहाँ जो है ना एक पढ़ा लिखा क्राउड रहता है, एक एफ्लुएंट क्राउड रहता है, रिच क्राउड रहता है। वहां पर अगर आप लोगों को समझा पाए तो मुझे लगता है कि आप बड़ा इम्पैक्ट डाल पाएंगे। आप बैंगलोर में हैं तो से फॉर एग्जाम्पल व्हाइट फील्ड है, फ्रेजर टाउन है, ये वो जगह है जहां पर जो है लोग जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं, उनका आना जाना ज्यादा है, राइट। सिमिलरली हर सिटी में होता है, तो वो आप हमको बताएंगे कि वो कौन सा एरिया है आपके यहाँ पर जहां आप फोकस करेंगे। वहां फोकस करके हम लोगों को जो है ना एक टारगेट सेट करेंगे हम कि इस पूरे 2 महीने के सेशन में, अगेन 8 वीक है, तो अगर 2-2 मस्जिद, 3-3 मस्जिद पर वीक भी कंसिडर की जाए तो वी मस्ट टारगेट एटलीस्ट 25 मस्जिद इन ईच सिटी। आप इमेजिन करें कि 25 मस्जिद से हम कनेक्ट कर पाए तो एक बड़ा फोर्स जो है ना वो इस पूरे प्लेटफॉर्म के पीछे खड़ा हुआ मिलेगा इंशाल्लाह हम लोगों को इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के बाद। तो ये करना है। उसमें जो दूसरा काम ये है कि आपको वहां पर जो है ना सेशंस प्लान करने हैं अवेयरनेस के। उसमें से इन तमाम लोगों में से अगर इक्का दुक्का लोग भी राजी, आप एक हफ्ते में जो है ना 4-5 मस्जिदों से मिलते हैं, वहां के लोगों से मिलते हैं और उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि एक सेशन प्लान करिए, आई विल कम एंड डू अ प्रेजेंटेशन कि व्हाट इज दिस प्लेटफॉर्म एंड हाउ इट इज गोइंग टू चेंज द लाइफ ऑफ द पीपल। बहुत लोग राजी हो जाएंगे। आप यकीन करिए, एफर्ट्स लेना हमारा काम है, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट दिलाना अल्लाह पाक का काम है ना। तो अल्लाह पे छोड़ेंगे, हम अपनी कोशिशें करेंगे और उनसे बोलेंगे कि भाई आप ये सेशन कराइए। तो वो सेशन कनेक्ट करना ये हम लोगों का एक बड़ी एक्टिविटी रहने वाली है। आई होप दैट इज क्लियर। उसके बाद आखिरी पॉइंट अभी जो लिखा हुआ है उस हिसाब से हम लोग कुछ पोस्टर्स और कुछ मटेरियल्स वगैरह शेयर करेंगे जो प्योरली ब्रांड प्रमोशन होगा। एक भी पोस्टर, एक भी मटेरियल ऐसा नहीं है कि जो ये कहेगा कि भाई कम एंड डोनेट। हमारा सारा मकसद ये है कि यूज दिस प्लेटफॉर्म एंड हेल्प पीपल फ्रॉम योर ओन फैमिली, हेल्प पीपल फ्रॉम योर ओन फ्रेंड्स, हेल्प पीपल फ्रॉम योर ओन नेबरहुड, हेल्प पीपल फ्रॉम योर ओन मस्जिद, राइट। सो दिस इज द बेसिक थिंग व्हिच वी वुड लाइक टू प्रमोट। ठीक है, हम ये कहीं नहीं कर रहे कि आइए इनको मदद कीजिए, इनको पैसा दीजिए, वो हम लोग अलग तरीके से कर रहे हैं। ये हम लोगों को लोगों तक बताना है। तो वंस वी डू दैट पोस्टर एक्टिविटी, तो उन पोस्टर एक्टिविटीज में वी विल नीड योर हेल्प विथ यू एज वेल एज यू कैन इन्वॉल्व योर फ्रेंड्स एज वेल। आप खुद अपना एक सर्कल ऑफ ट्रस्ट बनाइएगा इस पूरे प्रोसेस में और उनके साथ मिलके वो पोस्टर्स लगाने हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मिसाल के तौर पर एक सिंपल सी हदीस लिखी हुई, एक सिंपल सी कुरान की आयत जिसको अभी फुरकान भाई ने पढ़ा इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले, जिसका मफहूम ये है कि अल्लाह उस कौम की हालत तब तक नहीं बदलता जब तक वो खुद अपने हालात को बदलने की कोशिश ना करे। तो अगर यही हदीस शरीफ लिख के हर जगह लगाई जाए तो रिमाइंडर होगा ना कम्युनिटी के लिए, और साथ साथ में नीचे छोटा सा लोगो इंडिया ज़कात का लगा हुआ है, एंड दैट विल बी अ काइंड ऑफ प्रमोशन फॉर इंडिया ज़कात एज वेल। सो दिस इज गोइंग टू बी योर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। एक जो है नेक्स्ट एक्टिविटी विच इज ऑन मास मीडिया कनेक्ट। ठीक है, अभी हमने देखिए चुन के उन चीजों को लिया है जो बेसिकली कम्युनिटी को ड्राइव करती हैं। कम्युनिटी ड्राइव कहाँ से होती है? ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए, इंस्टीट्यूशंस के जरिए, कॉलेजेस के जरिए, मस्जिद के जरिए, एनजीओस के जरिए, फिर उसके बाद मीडिया हाउसेस के जरिए, राइट। तो ये जो पूरे टच पॉइंट्स है कम्युनिटी के, उनको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उन तक पहुंचे और उन तक अपनी बात पहुंचाएं और उनके जरिए जो है ना एक नया इनकलाब लाएं, एक नया एक बदलाव लाएं और एक तब्दीली लाएं,
राइट. नेक्स्ट बिग थिंग इज मास मीडिया. मास मीडिया मतलब एग्जिस्टिंग न्यूज़पेपर्स, न्यूज चैनल्स, न्यूज पोर्टल्स, यूट्यूबर्स, जो भी लोग हैं जो मीडिया की डोमेन में काम कर रहे हैं, उनसे बात करना. ठीक है. तो आपके हर एक के शहर में एक उर्दू अखबारात निकलते हैं, उनसे बात करना. रीजनल अखबारात निकलते हैं, उनसे बात करना. इंग्लिश न्यूज़पेपर्स हैं, उनसे बात करना. यानी उनके न्यूज जो रिपोर्टर्स हैं, उनका जो ऑफिस है, उनको जाके प्रेजेंटेशन देना. कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि नहीं मत दीजिए प्रेजेंटेशन, आपको लेना है 10 मिनट चाहिए. ये भी एक कला है, ये भी आपको सीखने का मौका मिलेगा कि लोगों को अपनी अपनी बातों पर कैसे जो है ना लाया जाए, अपनी बात कैसे मनवाई जाए, ये उनसे बात करना. और आपको एक बात मैं बता दूं कि डोंट फील दैट कि पीपल डोंट नो अबाउट एएमपी. ये सारे लोग जिनसे आप मिलेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि 80-90% ऑफ दीज पीपल जो ये कम्युनिटी लीडर्स हैं, दे नो अबाउट एएमपी. इनको एएमपी मालूम है, एटलीस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना होगा, इन्होंने जानते होंगे. तो ये आपको ना नहीं करेंगे इंशाल्लाह. तो ये इनसे बात करना, उनको जाके क्राउड प्लेटफॉर्म के बारे में बताना और उनको बोलना कि आप भी हेल्प करिए और आप खुद फायदा उठाइए और आप हम लोगों को ये मैसेज आगे बढ़ाने में मदद कीजिए. आपका एक बड़ा टारगेट होगा इंटर्न्स का कि ज्यादा से ज्यादा न्यूज़पेपर्स में इंडिया ज़कात को कवरेज दिलाना. हर शहर में इसके बारे में छपना चाहिए ताकि लोगों को मालूम पड़े. सो दैट इज दी ऑब्जेक्टिव. प्लस आखिर में हर शहर में आज की डेट में लोकल सोशल मीडिया चैनल्स हो गए हैं. यूट्यूब चैनल्स हैं, व्हाट्सएप चैनल्स हैं, न्यूज फ्लोट करते सब जगह है, हर शहर में मिलेगा. उनके ओनर से, उनके लोगों से राब्ता करना और उनसे बात करना, ये हमारा जो है ना बड़ा काम होगा. ठीक है. एक वो काम जिसके बारे में शकीब भाई आपसे बात कर रहे थे, विच इज बेनिफिशियरी कनेक्ट, पॉइंट नंबर 6. उसमें हम लोगों को ये कोशिश करनी है कि आप खुद अपने अतराफ के लोगों को कैसे हेल्प करते हैं. ठीक है. तो उनको जो है ना देखिए आप अपनी फैमिली से शुरू करिए. आप जो इंटर्न्स हमारे साथ काम करेंगे, से फॉर एग्जांपल 100 इंटर्न्स आर वर्किंग विद अस, वो खुद जो है ना पहले तो खुद फील करिए, पहले तो खुद फायदा उठाइए. हम अपने वॉलंटियर्स को बोलते हैं, मैं कई बार बीच बीच में मैसेज करता हूँ, हमारी जो टीम पूरी काम कर रही है, कि आपकी फैमिली में, आपके जानने वालों में कोई आदमी जरूरतमंद है तो पहले उसकी कॉज रेज करिए, उसको हेल्प करेंगे इंशाल्लाह, उसको सेल्फ सस्टेनेबल करेंगे, उसको कहीं उसकी जिंदगी जो है ना बदलेंगे इंशाल्लाह. तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है पहले से, अभी भी है. तो आप वो खुद जो है ना शुरू करें अपनी फैमिली से. आपकी फैमिली, मैं तो कहता हूँ शुरू करें खुद अपने आप से. अगर हम में से किसी बच्चे को किसी हेल्प की जरूरत है, से फॉर एग्जांपल इन दी फील्ड ऑफ एजुकेशन, अगर हम 300 बच्चों को, 500 बच्चों को हेल्प कर सकते हैं तो आपको भी कर सकते हैं इंशाल्लाह. सो वी विल स्टार्ट विथ यू. इस पूरे सर्कल में जितने बच्चे हैं जिनको खुद हेल्प की जरूरत है, इंशाल्लाह हम अपनी तरफ से कमी नहीं पड़ने देंगे. रिजल्ट अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह रिजल्ट देगा. कई बार हम लोग ऐसा होता है, मैंने खुद पर्सनली 2-3 बार, मतलब कई बार ऐसा हुआ कि हमने किसी कॉज को प्रमोट करने की कोशिश की, विद इन फ्यू आवर्स वी रेज मोर देन 1 लाख 2 लाख रुपीज. कभी कभी ऐसा हुआ कि कोई कॉज हम लोग प्रमोट करते हैं, पैसा ही नहीं आता है ना, बहुत जेन्युइन कॉजेज है, ऐसा होता है. तो वो अगेन वो अल्लाह के दस्ते कुदरत में है. अल्लाह जिसको चाहे जो है ना फायदा पहुंचाए, वो अल्लाह की मसलियत, अल्लाह जो करता है बेहतर करता है. तो हम अपनी मेहनत में कहीं भी कमी नहीं छोड़ेंगे. तो आप स्टार्ट करिए अपने आप से, अपने फ्रेंड्स से, अपनी कॉलेज से, अपने इंस्टीट्यूशन से, अपनी फैमिली से, अपने मोहल्ले से, अपने गांव से, जहां के आप रहने वाले हैं. हर बंदा कोशिश करे कि हम लोग जो है 4-5 जो हम टारगेट रखेंगे उतने कॉजेज रेज करेंगे. कॉज कैसे रेज करना, गो एंड रीड दैट ऑन indiazakat.com. स्टेप वाइज लिखा हुआ है on indiazakat.com. go to how we work, go to point number 3, you will find out that कि ये स्टेप्स है जिसके जरिए कॉज रेज करना है. राइट. वो कॉज आप रेज करेंगे तो से फॉर एग्जांपल इस पूरे इंटर्नशिप पीरियड में हम लोग 5 कॉजेज रेज करते हैं. जो मैंने डेली कॉजेज प्रमोशन की बात पॉइंट नंबर 1 में की थी, आप अपने ही कॉजेज को प्रमोट करिए. वी विल ट्रेन यू हाउ टू प्रमोट द कॉज. उसके लिए हम अलग से सेशन रखवा देंगे आपका एक्सपर्ट के जरिए कि कॉजेज को प्रमोट कैसे करना है, सोशल मीडिया का सबसे बेहतर से बेहतर इस्तेमाल कैसे करना है. वी विल डू अ ट्रेनिंग सेशन ऑन दैट फॉर ऑल ऑफ यू स्पेशली. राइट. आप उसमें हम लोगों को ये करना है कि आप जब खुद कॉज रेज करेंगे, उसको प्रमोट करेंगे और उसको कामयाबी दिलाएंगे इंशाल्लाह, और हम भी पीछे से मेहनत करेंगे कि आपको कामयाबी मिले, दुआ भी करेंगे, तब आपको महसूस होगा कि व्हाट अ बिग थिंग, व्हाट अ बिग अचीवमेंट यू हैव गॉट. अल्हम्दुलिल्लाह, कितना बड़ा काम आपने किया, तब आपको महसूस होगा. इस पूरे इंटर्नशिप का क्रक्स जो है ना इसी में आएगा इंशाल्लाह. जो पूरा मजा आपको आएगा ना इस पूरे काम का, वो इस एक्टिविटी में आएगा कि जब आपके जरिए जो है ना आपसे जुड़े हुए खुद के लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं फायदा उठा पाएंगे इंशाल्लाह. सो दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी. इस सारी एक्टिविटीज में आप ये ध्यान रखिएगा, हम लोग बहुत डिटेल स्ट्रक्चर्ड वे में आपको टास्क लिस्ट देंगे. पूरी टास्क लिस्ट डिफाइंड रहेगी और हमारे गाइड्स आपके साथ फॉलो अप करते रहेंगे. कंसीडर दिस एज अ वेरी वेरी सीरियस, आई एम रिपीटिंग,
इट्स अ वेरी वेरी सीरियस जॉब। जरा भी जो है ना, अगर किसी को ऐसा लगता हो कि वो सीरियसली नहीं करना चाहता, तो आप अभी से ना बोल सकते हैं, वी डोंट हैव एनी इशू इन दैट। लेकिन जो हमारे साथ काम करेगा वो बहुत सीरियस काम करेगा, उस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। दूसरा जो है एक पॉइंट है रिसर्च वाला। इसमें जैसे एक ही एग्जांपल लिखी हुई है, बट वी विल राइट मोर एग्जांपल्स, मोर एक्टिविटी लिस्ट एंड टास्क लिस्ट ओवर हियर, दैट जैसे हर जो मैंने जैसे मैंने एग्जांपल लिया ना, फ्रेजर टाउन का, बैंगलोर, जुबली हिल का, बॉम्बे में इफ यू कैन फाइंड आउट, बैंड्रा है फॉर एग्जांपल, अग्रीपाड़ा है, ये लोकेशंस हैं जहां पर एफ्लुएंट एंड रिच मुस्लिम्स रहते हैं। हम जो है वो एरियाज की लिस्ट बना लें फॉर एग्जांपल, और वहां पर फिर हम लोग जो है ना हमारी तरफ से पेड प्रमोशन करेंगे प्लेटफॉर्म का, है ना। इस तरीके से और आपको असाइनमेंट्स एंड टास्क इसमें लिखे जाएंगे, है ना, जो हम आपको, जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल असाइनमेंट होगा कि आप अपने यहाँ के की जितनी मसाजिद की लिस्ट, उनका नाम नंबर मौलाना का हमको ला कर दीजिए फॉर एग्जांपल, सो दैट वी कैन सेंड देम उर्दू कंटेंट ऑन व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम एंड ऑल दैट, ताकि इसके बारे में वो खुद जाने, उनको गाइड करेंगे, उनको समझाएंगे। तो इस तरह वी विल ऐड डिफरेंट पॉइंटर्स इनटू इट। वो आपको जो है हम जो है आपसे वो डिमांड करते रहेंगे हर वीक में वी में गिव यू डिफरेंट टास्क। कहीं पे भी ऐसा नहीं करेंगे कि आप ओवरबर्डन हो, ये ध्यान रख के करेंगे कि आप अच्छे से उसको कर ले जाएं इंशाल्लाह। उस तरह से ये एक्टिविटीज रहने वाली है। हमारी पूरी कोशिश होगी कि आप अपनी इन पूरी एक्टिविटीज को कंप्लीट करने में कामयाब हो इंशाल्लाह। उसको ध्यान में रखते हुए ये काम आगे बढ़ाएंगे। दूसरा जो है, अगेन वो जनरल पॉइंट्स हैं, आप उसको पढ़िएगा इंशाल्लाह। सो बेसिकली हर एक चीज टारगेट ड्रिवन होगी। कौन कितना अचीव करता है उसको हम मेजर करेंगे। हम इस पूरे प्रोग्राम को मॉनिटर करने के लिए ग्रेडिंग मैकेनिज्म बनाएंगे। वी हैव गॉट सम वंडरफुल पीपल इन आवर टीम, लाइक सूफी मैडम हु इज फ्रॉम भोपाल। शी हैज डिजाइंड वन रफ पॉइंटर, रफ पैरामीटर लिस्ट, कि जिसके जरिए सारे इंटर्न्स को हम ग्रेडिंग कर सकते हैं। उनकी रैंकिंग आप बोल रहे हैं, या ग्रेडिंग इज द राइट वर्ड, बेसिकली ग्रेडिंग करेंगे और वो आपको बताएंगे कि हाउ योर इंटर्नशिप वाज, क्या रिजल्ट्स आपके आए हैं, है ना। पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट वगैरह तो सबको मिलेगा, रिकमेंडेशन लेटर सबको मिलेगा, लेकिन वी विल आल्सो गिव यू ग्रेडिंग, वो हम लोग लिखकर अपनी तरफ से देंगे। तो ये आपके बीच में अपने आप से कंपटीशन करने के लिए एक जो है ना बहुत अच्छा पॉइंट है कि आप इसको किस तरह से आगे बढ़ाएंगे। इस पूरे प्रोसेस को चलाने के लिए हम लोग जो है बेसिकली वी विल गिव यू, हमारे मेंटर्स और गाइड्स तो रहेंगे आप सबके साथ में, हमारी कोर टीम भी होगी, लेकिन डेली एक्टिविटी रिपोर्टिंग के लिए हम एक मैकेनिज्म बनाएंगे। आपको गूगल फॉर्म के जरिए आपको रोज की रोज रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। आपके लिए वीकली रिव्यू मैकेनिज्म बनाएंगे कि व्हाट एग्जैक्टली यू हैव डन, जो हर एक के साथ पर्सनली वीकली रिव्यू होगा, जो हमारे गाइड्स जो है, मेंटर्स जो है करेंगे, है ना। आपके साथ जो हम आपसे इनपुट्स मांग रहे हैं, जो रिपोर्ट्स मांग रहे हैं, उसके सबमिशन के लिए वी विल मेक अ डिटेल्ड डॉक्यूमेंट इंशाल्लाह। तो ये सारी चीजें इस तरह से रन करने वाली हैं। और ये जो शीट आप सामने देख रहे हैं, आप ये समझ लीजिएगा दिस विल बी योर बेस पॉइंट, यहीं से सब कुछ रन होगा। तो हमारे जो मेंटर्स हैं कॉल पे, उनके लिए भी ये बात है कि यहीं से सब कुछ चलने वाला है। ये चूंकि हम लोग भी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इसको फेयर करने में शायद हम लोगों को थोड़ा सा और टाइम लग जाए, लेकिन मुझे लगता है कि विद इन अ वीक बिफोर वी स्टार्ट एग्जैक्टली विद द इंटर्नशिप, ये बहुत फाइनल फॉर्मेट में अवेलेबल होगा आप लोगों के सामने। इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी, यू कैन ऑलवेज बी इन टच विद अम्मार भाई and the team which is managing this, शबनम जी, शबनम मैडम है ना, अम्मार भाई, शबनम मैडम, इन सब के साथ आप लगातार राब्ते में रह सकते हैं इंशाल्लाह। ये सारे लोग आपको हेल्प करेंगे। आई वुड take up few questions which have come from students already on the form which we have floated. बहुत सारे लोगों का पूछना ये था कि भाई ये पेड इंटर्नशिप है कि फ्री है। तो भाई पेड इंटर्नशिप हम लोग नहीं करते और ना कर सकते हैं। इट्स कोई स्टाइपेंड नहीं दिया जाएगा आपको कभी कुछ एक्टिविटी करने में, फॉर एग्जांपल कोई इवेंट करना है, कुछ मोबिलाइजेशन करना है, कहीं आना जाना है, अगर वो खर्च है और अगर आप कन्विंस कर लेते हैं अपने गाइड को, इंशाल्लाह वी विल गिव दैट। बट इंटर्नशिप करने के लिए जो है ना हम लोग कोई स्टाइपेंड नहीं देंगे, ठीक है। दिस इज वन पॉइंट। दूसरा पॉइंट आमतौर पे ये था कि किस तरह के स्टूडेंट्स कर सकते हैं। हर टाइप के कोई स्टूडेंट्स जो है इसको कर सकते हैं। किस स्टेट के लोगों को लगा हम कश्मीर में है तो कर सकते हैं, आप चाहे कश्मीर में रहे, चाहे कन्याकुमारी में रहे, आप इस इंटर्नशिप को कर सकते हैं। इवन इफ यू आर नॉट इन इंडिया, इफ यू आर फ्रॉम से फॉर एग्जांपल मलेशिया एंड इंडोनेशिया, वहां भी अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। वहां पर इंडियंस को रीच आउट करने के लिए हम जो है इस प्रोजेक्ट को चलाएंगे इंशाल्लाह। एक क्वेश्चन ऐसा था कि लड़कियां कैसे कर सकती हैं। लड़कियां भी पार्टिसिपेट हो सकती हैं। लड़कियों को शायद इक्का दुक्का एक्टिविटी में शायद प्रॉब्लम आए, हम लोग वी वुड नॉट लाइक देम टू गो एंड स्टिक पोस्टर्स, है ना।
तो वो सारी चीजों में हम उनको छूट देंगे, उसके बदले में उनके साथ जो है इक्का दुक्का एक्टिविटीज ऐड करेंगे फॉर एग्जांपल, विच इज वो ऐसी होगी कि जो शायद वो हमसे बेहतर, लड़कों से बेहतर कर सके, वो एक्टिविटीज को उसमें इन्वॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। ये क्वेश्चन बहुत मैंने देखा लोगों का। दूसरा एक देखा कि इस इंटर्नशिप के बाद क्या होगा, तो सारे बेनिफिट्स तो जो मिल रहे हैं वो मिलते रहेंगे, लेकिन आई वुड लाइक टू गिव कमिटमेंट टू दी इंटर्न्स कि कुछ स्टूडेंट्स जो इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, हमारी जो सोच है या हमारी जो हमने एक बेंचमार्क सेट किया, उस बेंचमार्क को क्रॉस करने वालों को इंशाल्लाह वी वुड लाइक टू हैव देम फुल टाइम विद इंडिया ज़कात इंशाल्लाह एज एन मतलब काइंड ऑफ अ पेड असाइनमेंट के तौर पे इंशाल्लाह हम उनको लेंगे। अदरवाइज ये जो फैमिली बन रही है ये तो अब इंशाल्लाह लाइफ लॉन्ग चलेगी हमारे साथ में। 2 महीने का इंटर्नशिप है, हम सबकी कोशिश होनी चाहिए कि सिर्फ 2 महीने पे ना रहे, बल्कि इंटर्नशिप प्रोग्राम खत्म होने के बाद भी हम सब लोग साथ में जुड़े रहें, साथ में काम करते रहें और साथ में इस सिलसिले को, इस कारवां को आगे लेकर बढ़ते रहें, है ना। जितने ज्यादा लोग हमारे और आपकी तरह जुड़ेंगे उतना ज्यादा जो है ना बदलाव इंशाल्लाह लाया जा सकता है। और तो कोई खास क्वेश्चन मुझे इसमें जो है ना फुरकान भाई नहीं दिख रहा। मुझे लगता है इसके बाद क्वेश्चन आंसर आप सब लोग भी हैंडल कर सकते हैं, मैं भी हूँ, सो वी विल स्टार्ट टेकिंग क्वेश्चंस इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, ऑल द वेरी बेस्ट। उम्मीद है कि ये जो है हमने कोशिश शुरू की है, ये जो एक नया इनिशिएटिव हमने लिया है, अल्लाह इसको कामयाब करे, जिस तरह दूसरे सारे इनिशिएटिव अल्लाह ने कामयाब किए हैं एएमपी के, ये भी एक बहुत कामयाब इनिशिएटिव हो इंशाल्लाह। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Jazakallah khair, Amir bhai, for in detail explanation about the complete job role and the question answers. अब अगर किसी को कोई सवाल है तो you can ask. Furqan, I just want to put up one point which I missed it out and I just Sure. remembered, if that is okay. All right. See, Go ahead. सब लोग ये पूछते हैं कि इसका फायदा क्या है हमारे लिए। मैं आप लोगों के लिए मैं इंटरनेशनल एजुकेशन फील्ड में पिछले 15 साल से हूँ एंड आई एम लीडिंग बिजनेस ऑपरेशंस फॉर वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एजुकेशन कंसल्टिंग फर्म। आप जब बाहर पढ़ने जाते हैं, एक बहुत बड़ी चीज होती है हमारे यहाँ की, हमें स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। हम ये पूछते हैं कि स्कॉलरशिप क्यों नहीं मिलती। उसका बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि आपकी जैसी प्रोफाइल के बहुत लोग जाते हैं। मैं आपको एक अपने एक्सपीरियंस, जो पिछले 15 साल का एक्सपीरियंस है, उसमें ये बता सकता हूँ। आप जब किसी भी लाइव सोशल कॉज के लिए काम करते हैं, it is considered to be a very, very big tick mark in your CV, not only when you are looking for education, but also for companies like Google, Facebook, जो top companies हैं दुनिया की, उनके इंडिया के ऑफिसेस में जब आप उनको बताते हैं कि आप सोशल कॉजेस के लाइव प्रोग्राम्स के लिए कॉज कर रहे हैं, they actually look for those kind of students जो कि उनको रेयरली मिलते हैं। तो ये आपके पर्सनल ग्रोथ जो आमिर भाई ने बताई, वो सब चीजों के साथ साथ ये आपके सीवीज को, जो कहते हैं ना कि बैकएंड, आपकी बैकबोन को भी बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा। Absolutely, बिल्कुल सही बताया आपने। और अपार्ट फ्रॉम दिस, वैसे तो बहुत सारे बेनिफिट्स है, डेफिनेटली जब स्टूडेंट्स करेंगे तो दे विल कम टू नो अबाउट ऑल द बेनिफिट्स, बट अपार्ट फ्रॉम दिस अल्टीमेट बेनिफिट जो मुझे सबसे बेहतर लगता है कि हर कदम आप जो इस तरफ लेके जाएंगे, लोगों की मेहनत की तरफ, अल्लाह ताला उसका अजर देता जाएगा आप लोगों को। दिस इज द अल्टीमेट बेनिफिट व्हिच एवरीवन ऑफ अस कैन गेट। अपार्ट फ्रॉम दैट दूसरे बेनिफिट्स तो जैसे शाकिब भाई और आमिर भाई ने बताया, यू विल गेट दैट फॉर श्योर। किसी को अगर कुछ क्वेश्चंस है बिफोर स्टार्टिंग दिस इंटर्नशिप? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर मेरा नाम जैनुल बाबजी, फ्रॉम श्रीनगर कश्मीर से हूँ सर। जी सर मेरा ये क्वेश्चन है, इसमें अभी मैं पढ़ रहा हूँ सर, MBA कर रहा हूँ। हमारा जो इसमें एक प्रोग्राम आता है, इंटर्नशिप प्रोग्राम आता है अलग से। सर मेरा ये कहने का मतलब है, जब मैं इंटर्नशिप करूंगा, क्या आप मुझे उस वक्त वो जो पूरा जो ये डिटेल्स होती है ना, रिपोर्ट कार्ड होता है, क्या वो सबमिट मुझे उस वक्त कर सकते हो, ताकि मैं यूनिवर्सिटी में वो उसको हैंड ओवर कर सकूं और मेरा जो ये क्या बोल रिपोर्ट है वो मैं आगे भेज सकूं, ताकि मेरा डिग्री अच्छी तरह पास हो जाए। और मैं ये कहना चाहूंगा, जहाँ तक आपने बात की चैरिटी का, या वो ठीक है, हम तो ये स्टूडेंट हैं, जो भी इसमें अलाउंसेस आएगा, मसलन हमें कहीं जाना होगा, गाड़ी का खर्चा आएगा, क्या हमें वो अपनी पॉकेट मनी से ही करना होगा या आप उसमें कुछ करेंगे? जी आमिर भाई, यू कैन टेक ओवर। मैं आंसर करूं? सो एक दो क्वेश्चंस थे,
तो इंशाल्लाह फुरकान भाई, शबनम एंड अम्मार भाई, वी शुड सेंड ऑफर लेटर टू ऑल दीज इंटर्न्स जो हमारे साथ काम करने के लिए आज के कॉल के बाद इट विल बी वेरी क्लियर दैट हु आर गोइंग टू स्टे विथ अस. सो वी विल गिव देम प्रॉपर ऑफर लेटर कि आप हमारे साथ इंटर्नशिप कर रहे हैं और उसके अंदर डिटेल लिखी होगी. दैट वी विल गिव, यू कैन सबमिट इट टू योर कॉलेज और वेयर एवर यू वांट. नंबर 1, आपका इंटर्नशिप खत्म होने पे मैंने कहा कि वी विल गिव यू सर्टिफिकेट, वी विल गिव यू लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, वी विल आल्सो गिव यू ग्रेडिंग कि भाई ये ग्रेड रहा आपका इंटर्नशिप प्रोग्राम का पूरा. ये आपके प्रोग्राम खत्म होने पे हम आप सब लोगों को देंगे. तो रेस्ट एश्योर्ड, ये आप ध्यान रखें, हमारे मेंटोर्स भी ध्यान रखें और इंटर्न्स भी ध्यान रखें कि हम लोग ऑफर लेटर भी देंगे और आखिर में सर्टिफिकेट भी देंगे इंशाल्लाह. दैट इज पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, जो इस पूरे इंटर्नशिप एक्टिविटीज में अगर काम करने में इफ देयर आर जेन्युइन एक्सपेंसेस, वी मस्ट बियर दैट, है ना. AMP शुड बियर दैट. ओनली पॉइंट विल बी देयर कि ये जो है ना, इट विल हैपन थ्रू द अप्रूवल ऑफ योर मेंटोर, जो हम आपको असाइन करेंगे, जो आपके गाइड होंगे, उनके अप्रूवल से हम ये जो है ना, वी विल रीइंबर्स यू दिस मनी इंशाल्लाह. सो डोंट वरी अबाउट इट. जो जेन्युइन खर्च है, वी शुड ट्राई टू डू दैट. सो अगेन आवर टीम शुड टेक नोट ऑफ इट कि, लेकिन ये मेंटोर्स का अप्रूवल आप एक बार लीजिएगा इसमें. दैट वी विल डू इंशाल्लाह. ठीक है ना फुरकान भाई? जी इंशाल्लाह. Sayyid Mujtaba was raising hand. जी, you can unmute मुज्तबा भाई. क्वेश्चन है सर. जी सर हमें एक अभी एनजीओ चल रही है जो सोसाइटी रजिस्टर्ड है जम्मू एंड कश्मीर में सर. पूरे इंडिया में रजिस्टर्ड, आप फिक्र नहीं करें. जी AMP की बात कर रहे हैं आप? जी जैन की सोसाइटी रजिस्टर्ड है अंडर एक्ट ऑफ 19 कुछ है वही. सर मैं ये कहना चाहूंगा, हम जुड़ना चाहते हैं AMP से, क्योंकि हम जहां तक आपने प्रमोशन की बात की, जहां तक आपने ब्रांड मार्केटिंग की बात की, सर मैं चाहता हूँ एज ए इंडिविजुअल लेवल की छोड़ के, सर एज ए स्टूडेंट छोड़ के, मैं एज ए वाइस चेयरमैन ऑफ NGO यूथ सोसाइटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में ये कहना चाहूंगा सर कि मैं चाहता हूँ एफिलिएशन हो के मैं आपके साथ जुड़ना चाहूंगा, ताकि जो हमारा समाज है कश्मीर जो पूरा है, श्रीनगर है, जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, इसमें हम उसमें अच्छी तरह काम करके एक जो मिशन एंड विजन है AMP का, वही मद्देनजर रखते हुए समाज के लोगों का, खुसूसन स्टूडेंट्स का फायदा पहुंचाएंगे, चाहे ज़कात फाउंडेशन के ओर से, चाहे AMP में जितने भी सब डिपार्टमेंट्स में होंगे, उनकी माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि इसमें हम पूरा क्या बताएं, एनहांस करेंगे बच्चों को. कश्मीर हमारे दिल में है. मैं आपकी बात समझ गया. हम चाहते हैं कि एनहांस करेंगे बच्चों को, ताकि अगर आप इसमें थोड़ा सा आप एज एफिलिएशन सर्टिफिकेट बोलने दे तो मैं आपको आंसर करूं. मुझे बोलने दीजिए. चलो मैं आपको अलग से हमारे जो NGO कनेक्ट टीम है उनसे भी कनेक्ट करा दूंगा. डोंट वरी, आप इससे शुरुआत करें. ये पहला स्टेप है ना. हर चीज जो है ना स्लोली ग्रो करती है, तो आप पहला स्टेप ले, आहिस्ते आहिस्ते कदम ब कदम आगे बढ़ते रहेंगे और उसके बाद स्काई इज द लिमिट. आप जो है, हो सकता है कल को आने वाले दिनों में आप AMP के प्रेसिडेंट बने, है ना. हु हैज स्टॉप्ड यू इन अचीविंग दैट? ऐसा वक्त भी आ सकता है. सो टेक स्मॉल स्टेप्स, स्लो काम बढ़ाएं, इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट आएंगे. मीनवाइल वी विल कनेक्ट यू विद आवर NGO कनेक्ट टीम एज वेल इंशाल्लाह. डोंट वरी. वो तो है सर. इससे पहले जो AMP ने एग्जाम किया था बच्चों के लिए, मैंने इसमें बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, पोस्टर्स, खुद मैसेजेस ग्रुप बनाए हैं FB पे, WhatsApp पे. बहुत अच्छा रहा, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट थे, खुसूसन 12th के स्टूडेंट थे, उनको वो बहुत अच्छा रहा. खुसूसन उनको नीट में जाना होता है या जो है ना, ये इस तरह बढ़ता रहेगा सिलसिला. हाँ, है ना. अभी हम लोग और बहुत सारा काम करेंगे. आप लोग ये तो करिए, शुरू करिए. हमारे पास 8-10 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं. डोंट वरी, बहुत सारी एक्टिविटीज है जो एक्चुअल में स्टूडेंट्स, खासतौर पे हायर स्टडीज में पढ़ने वाले बच्चों के काम की है, या वो बच्चे जो थोड़े से बड़े हो जाते हैं उनके काम की है. आपको एक के बाद एक जो है ना सब में इन्वॉल्व करेंगे. तो लेट अस कीप आवर फोकस ऑन दिस टुडे इंटर्नशिप प्रोग्राम. अभी थोड़ा सा बाहर नहीं जाते, इंटर्नशिप पे बात कर लेते हैं. लोगों के क्वेश्चंस वी विल टेक दैट. फुरकान भाई, यू कैन टेक अदर क्वेश्चंस फ्रॉम अदर्स एज वेल. सो वो हम लोग अलग से बात कर लेंगे. इंशा फारूक, उनको कुछ सवाल था. इंशा फारूक, आप बात कर सकते हैं. सर हेलो. हाँ हेलो, एक एक करके. हाँ, आप लोगों का नाम लीजिएगा. नसीम, कौन बोल रहे हैं आप? हाँ सर, मैं नासिम बोल रहा हूँ, हावड़ा कोलकाता से. अच्छा ठीक है, पहले आप बोल लीजिए. चलिए.
हाँ हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने तो एएमपी को देखा है, पूरा जाना है 2020 में। एक सेमिनार में जाके एएमपी से मेरा मुलाकात हुआ था। तो सर मेरा क्वेश्चन यही है कि मैं एमबीए किया हूँ आली यूनिवर्सिटी से, ठीक है। तो कुछ प्रॉब्लम के वजह से मैं अपना जॉब कंटिन्यू नहीं कर पाया। अभी मैं एमएसएमई से एंटरप्रेन्योरशिप का ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहा हूँ बहुत सारा, ठीक है। तो मेरा फ्यूचर में इच्छा है कि मेरा अपना एक बिजनेस हो। तो अभी मेरा तो उतना नॉलेज नहीं है, तो इसलिए मैं ये सब डिजिटल ट्रेनिंग प्रोग्राम करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा जो प्रॉब्लम हुआ था वो मेरा सीबी में एक्सपोजर हुआ। तो क्या मैं एएमपी के साथ इस इंटर्नशिप के बाद क्या मैं फुल टाइम जुड़ सकता हूँ? कोई हम लोग ऐसा वजह है? 2 महीना गुजरने दे, सब होगा। अभी इंटर्नशिप पे क्वेश्चन पूछें। अभी एवरीबॉडी अच्छा, लाइक यू आर रिक्वेस्टेड टू आस्क क्वेश्चन अबाउट दिस प्रोग्राम। मैं ये बोल रहा हूँ एएमपी इज ओके ऑल ओपन, ताकयामत चलने वाले ऑर्गेनाइजेशन, आप तब तक जुड़े रह सकते हैं, डोंट वरी। हम Yes. किसी को जाने नहीं ओके बोलते, सर। हम सबको साथ में लेने की बात करते हैं। सो डोंट वरी अबाउट इट। हम लोग आप जैसे अच्छे लोग हमेशा चाहिए, आप सब, आप तमाम ही लोग जैसे। सो अभी इंटर्नशिप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछें आप लोग प्लीज। सर और एक चीज सर, हाँ इंटर्नशिप रिलेटेड ही सर, मैंने अप्लाई किया था डिजिटल मार्केटिंग के लिए, सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए। तो सर मेरा जो काम होगा वो क्या ऑनलाइन बेसिस ही होगा या मुझे कहीं जाना पड़ेगा? अरे बाबा, अभी 45 मिनट बोला हूँ, मेरी हलक सूख गई बात करते करते। एग्जैक्टली यही तो बताया गया। ये जो पूरा बताया गया है कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है, वही हमने प्रेजेंट किया ना। और वो और डिटेल में आपको आपके मेंटर्स भी गाइड करेंगे, वही करना है, वही 8-10 एक्टिविटीज जो हमने बताई वही करनी हाँ है हाँ हम लोग। समझ गया सब ओके सर। क्लियर वेरी होगा गुड, आपको शाबाश इंशाल्लाह, टेंशन नहीं। ओके शाबाश ओके, शाबाश। थैंक यू सर, थैंक यू। तालिबुल इस्लाम आपको कुछ बोलना है? यस सर। हाँ बताइए। सर इज देयर एनी टाइम रिस्ट्रिक्शन? अगर सर जैसे हम लोग का सर ऑनलाइन सेशन क्लास चल रहा है अभी सर, तो सर टाइम का तो रिस्ट्रिक्शन हो सकता है सर, क्योंकि सर 9 to 5 हम लोग का क्लास चलता है सर, मंडे टू सैटरडे। हाँ, आप बहुत आप बिजी हैं, लेकिन आप फिर भी हम अपने लोग जो है कन्वीनियंस से कर सकते हैं इंशाल्लाह। कर जी सकते हैं। इट विल बी फ्लेक्सिबल। आप जी, जो आपको टारगेट्स और असाइनमेंट्स दिए जाएंगे वो कंप्लीट करना जो है ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्युटली। अच्छा, ओके सर, थैंक यू सर। Assalamualaikum, sir. Then can we have Shahnur Alum? शाहनूर आलम। वालेकुम अस्सलाम। जी बताइए आपका सवाल। सर मैं नलवर आसाम से बोल रहा हूँ। मेरा नाम है शाहनूर आलम। मैं फुरकान से बात की थी थोड़ी 2 या 3 वीक से पहले शायद। तो सर हमारे यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन से जो कूटनीति समाज कल्याण परिषद है उससे और ऑर्फनेज स्टूडेंट को हम एक्चुअली रमजान के महीने में हर साल में या ईद से पहले और कुछ ना कुछ दे सकती है। तो सर देखिए ना, लॉकडाउन से उसके बाद थोड़ा जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैंने सोचा था कि इस प्रोजेक्ट से हमारा इस ऑर्फनेज जो एनजीओ है इसको क्या फायदा होगा और किस तरह से काम करो हम। आप बिल्कुल कॉज रेज कर सकते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन पे। इस इंटर्नशिप में आपका काम यही रहेगा एज एज ए प्राइमरी, जैसे जैसे आमिर भाई इन डिटेल बताए थे आपको। आप रेज कीजिए ऑर्फनेज का आप कॉज indiazakat.com पे, फिर उसको प्रमोट करना है जो भी है, इंशाल्लाह दैट कैन बी टेकन फॉरवर्ड। जी सर। ठीक है। Assalamualaikum, sir. जैनिब खान, हाँ उजैर वोहरा। हेलो Assalamualaikum, sir. वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम उजैर। सर एक्चुअली मैं अभी मेरा अभी कॉलेज चल रहा है, यूनिवर्सिटी एग्जाम चल रहा है सर, और मैं अभी इंटर्नशिप करना चाहता हूँ एमपी के साथ। तो सर यानी वो मेंटेन हो सकता है ना सर? हाँ कब तक है absolutely। एग्जाम? हो सकता है। हाँ ओके सर। वैसे जुहैर उजैर तो माशाल्लाह काफी एक्टिव हैं ऑलरेडी, वो खुद का कॉज प्रमोट भी करते हैं माशाल्लाह। तो जी दैट्स अ सर। ग्रेट थिंग। यू कैन बी एन असेट फॉर इंडिया ज़कात इन फ्यूचर इंशाल्लाह। कैन वी हैव जी सर। जनीत खान? And sir, I am Yes, very excited for my internship question. in MP. इंशाल्लाह इंशाल्लाह। यस जनीत, आप बताइए। Yes, we were talking about NGO Connect. So Right. NGO Connect में are we only talking about NGOs जो Muslim leaders run करते हैं, or can we collab with NGOs? Like in Baroda, we have several NGOs run by Christians and Hindus, and they work irrespective of the caste and creed. So हम उनके साथ collab कर सकते हैं? सो बेसिकली देखिए कैसा है ना, क्योंकि इट इज ज़कात फोकस्ड और ज़कात का ताल्लुक बहुत ज्यादा सिर्फ मुस्लिम से है। तो फॉर दिस
दिस स्पेसिफिक एक्टिविटी जो है ना, यानी ज़कात से रिलेटेड एक्टिविटी के लिए हम लोग सिर्फ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही पार्टनरशिप करते हैं। लेकिन आप जो है ना AMP के दूसरे जितने सारे काम है ना, they all are open for everyone, मतलब we work for everyone without caste creed in national region etc. So we are open in that scenario. अभी इन पे cause create करना, cause raise करना, right now we are doing it only for Muslims on this platform. तो फिलहाल we will limit under this program, we will limit it to only Muslims. और जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, एक स्टेप आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो आप लोग म्यूट करिए, आसिफ भाई म्यूट करिए, तो we will take it forward to other organizations as well इंशाल्लाह. Just a follow-up question, अगर हम लोग उन NGOs को explicitly clear कर दें, मतलब काफी open minded भी होते हैं कि we are looking only for the Muslim students, तो आपके पास जो मुस्लिम कम्युनिटी आती है आप उनको फॉरवर्ड कर दें, तो इज इट फाइन अगर हम लोग explicitly स्टेट कर दें? हाँ कोई बात नहीं, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा बुरा लगता है, कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह। और कोई हैंड रेज्ड है या कोई? सैयद मुश्तबा साहब हैंड रेज कर रहे हैं, सैयद मुश्तबा सामने। हाँ सैयद मुश्तबा, जी बताइए। अनम्यूट करिए आप। अनम्यूट करना होगा आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मैं एक्चुअली मतलब जम्मू एंड कश्मीर से बारामूला से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरी एक मतलब सोसाइटी चल रही है, स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी। मतलब इसमें मतलब जो भी मेरे साथी है वो मतलब उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन किया है कि हम भी ये इंटर्नशिप करना चाहते हैं, लेकिन इसमें मतलब कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट मत होना चाहिए, जैसे आर्ट्स वाले, मेडिकल वाले, नॉन मेडिकल वाले, इस लिहाज से। सो बेसिकली अगर आपने ये गौर किया होगा पूरी एक्टिविटीज पे, तो इट्स अ प्योरली मैनेजमेंट काइंड ऑफ जॉब रोल है ना, ऐसा मैनेजमेंट जो हर आदमी को जरूरत लगती है, वो चीजें हैं। तो आप बेसिकली किस फील्ड से हैं वो उसका बहुत ज्यादा मैटर यहाँ नहीं कर रहा। और ओवरऑल मोस्टली स्टूडेंट जो है मतलब वो मेडिकल और आर्ट्स मतलब बैकग्राउंड से, नॉन मेडिकल से, मतलब जो ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट से यानी ग्रेजुएशन में एनरोल्ड है या ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, वो कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। ओके सर, मैंने भी मतलब एक और भी क्वेश्चन किया था कमेंट में, मतलब मेरे कॉलेज में बहुत सारे मतलब स्टूडेंट है जो फाइनेंशियली वीक स्टूडेंट है, मतलब उनका कुछ हो सकता है, मतलब उनकी हेल्प मतलब कुछ किसी भी आप शुरू करें, हम गाइड करेंगे। ओके, थैंक यू सर। आप 2 बच्चे 4 बच्चों से शुरू करिए, हम आपको गाइड करेंगे, आप खुद मास्टर हो जाएंगे इंशाल्लाह, then you will do everything on your own inshallah. So our objective is you to don't give only fish, we will train you how to fish inshallah. Okay, thank you sir. So Mueed Ahmed, can you unmute yourself? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, जी बताइए। सर मैं अभी तो जॉब सीकर हूँ सर, अपनी जॉब के लिए चाह रहा था, और साथ में आपका ये जो ऑब्जेक्टिव है वो बहुत अच्छा लगा मुझे भी, तो मैं इसके साथ जुड़ना चाहता हूँ। तो थोड़ा प्रॉब्लम भी हो सकती है मेरे लिए, क्योंकि मेरा फोकस दूसरी तरफ, लेकिन फिर भी मैं ये करना चाहता हूँ, तो मैं रिगार्डिंग चल जाएगा। आप शुरू करिए, अल्लाह पाक रास्ते बनाएगा, इंटर्नशिप के लिए भी रास्ते बनाएगा अल्लाह, आपकी जॉब के लिए भी रास्ते बनाएगा। हम सब लोग दुआ करेंगे आपको जल्द से जल्द जॉब लगे, अल्लाह पाक इंशाल्लाह। और खास तौर पे सभी स्टूडेंट्स के लिए हम स्पेशल दुआ करते हैं। इंटर्नशिप ग्रुप में भी डिस्कस हुआ था, मैनेजमेंट ग्रुप में, कि लेट्स प्रे फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स, अल्लाह उनको भी कामयाबी दे और इसके जरिए इंशाल्लाह इंडिया ज़कात को भी कामयाबी दे। बस आमीन। गजाला राशिद, आपको कुछ बोलना है? अनम्यूट कर सकते हैं आप गजाला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, एज वी ऑल नो यू आर सेइंग अबाउट इंटर्नशिप, तो मैं ये कहना चाहती हूँ जो हमारे कश्मीर में, मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सोपोर से बात कर रही हूँ, वहाँ पे बहुत सारे मतलब ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा वीक फैमिली से आते हैं, जो फाइनेंशियली मतलब टोटल मतलब ये नहीं कर एफोर्ड नहीं कर पाता है, मतलब ऐसी चीजें कॉलेज में जो पढ़ना चाहते हैं, बट फाइनेंशियली उनके पास वो सब नहीं है कि वो पढ़ सकते हैं। मतलब आपके थ्रू क्या हो सकता है उनके लिए, तो मैं वो करना चाहती हूँ कि किसी स्टूडेंट, क्योंकि मेरे मतलब फ्रेंड्स है जो पढ़ना चाहते हैं, जिनकी एम है हम कुछ करें, बट उनका जो घर है वो
उस हिसाब से नहीं है कि वो आगे जाके कुछ पढ़े। मतलब फिलहाल तो वो अब ग्रेजुएशन खत्म करना चाहता है, बट उसके बाद वो पढ़ना चाहता है, लेकिन जब उनके पास वो सब है ही नहीं कि वो आगे भी पढ़े, वो आगे भी कुछ करे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ आपके थ्रू क्या हो सकता है जो कल को मैं वहां कॉलेज जाके बोल सकती हूँ, अवेयर कर सकती हूँ उन स्टूडेंट्स को कि आप ये ऐसे करो जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो। माशाल्लाह। आप मुझे आप बोलिए। गजाला, आप ऑलरेडी कैंपस एम्बेसडर है ना? कैंपस जी जी एम्बेसडर्स के सर। ग्रुप में हैं आप, और कैंपस एम्बेसडर्स का वन ऑफ द इनिशिएटिव जो है वो इसी इसी फोकस पे है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एजुकेशन, क्योंकि एएमपी का काम ही यही है कि एजुकेशन और एम्पावरमेंट, एम्प्लॉयमेंट, यही एएमपी का काम है। तो उस पे इंशाल्लाह हम काम करेंगे। आपको चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा इन चीजों को सामने लाएं और अपनी मेहनत से, अपनी कोशिश से एएमपी की मदद लें और उसको आगे बढ़ाएं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कुछ एजुकेशनल यानी एजुकेशनल सपोर्ट है तो इंडिया ज़कात इज ऑलवेज देयर। ठीक है। वी आर सर स्पेसिफिकली टॉकिंग ऑन इंटर्नशिप नाउ। तो इंटर्नशिप में ये आप सर यही कर सकते हैं कि इंटर्नशिप में indiazakat.com को यूटिलाइज कीजिए, ये प्लेटफॉर्म को, और उसके ये जरिए सर मतलब इंशाल्लाह। ये सर मैं चाहती हूँ अगर मैं मतलब कल कॉलेज जाऊँ फिर मैं वहाँ पे प्रिंसिपल से बात करूँ। अभी मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, बीए थर्ड सेम की स्टूडेंट हूँ। मैं चाहती हूँ मैं कल को वहाँ पे प्रिंसिपल को बोल सकती हूँ ऐसे कोई है indiazakat.com पे ऐसे होता है। मतलब वो मुझे बोलेंगे, मतलब मेरे बोलने से उनको समझ नहीं आएगा ना, वो बोलेंगे तो बोला एक स्टूडेंट ने, फायदा क्या है पता नहीं होगा। मैं चाहती हूँ मतलब वहाँ पे बहुत सारे इंटर्नशिप्स हो रहे हैं रिसेंटली। मैं चाहती हूँ मतलब कश्मीर में भी होगा इनका कुछ आपका अपना, वो आए हमारे कॉलेज में, वो वहाँ पे एक इंटर्नशिप क्रिएट करे, मतलब जिससे बच्चे सारे अवेयर हो जाए। ग्रेट। क्योंकि ऐसे आप ऐसे में क्यों वो सोच रहे हैं कि आप बोलेंगे उनको समझ में नहीं आएगा? आप बोलकर तो नहीं देखिए, सर, उनको समझ में आएगा नहीं इंशाल्लाह। नंबर सर, 1, दैट शुड बी स्टेप नंबर 1। स्टेप यस नंबर सर 2, उसके बाद वो फर्दर बात करना चाहती हैं तो आर टीम्स, मतलब वो पूरी टीम्स है ना, पूरा स्ट्रक्चर है। आप अपने यस मेंटोर के सर जरिए उनसे वहाँ जो गाइड आपको असाइन किया जाएगा उसके जरिए आप वहाँ बात कराइए। हमारी कोर टीम है, उनसे बात जी सर। कराइए। तो एक एक स्टेप आगे बढ़ते रहेंगे, है ना? सो यस सर डोंट मतलब थिंक मैं चाह टू मच, टेक फर्स्ट स्टेप, यस सर आहिस्ते आहिस्ते, दैट्स देन वी ट्रू। विल इंशाल्लाह। यस सर दैट्स ट्रू, बट मैं अकेली मतलब जाऊंगी, मतलब वहां पे आप तो अकेली नहीं हजारों हैं, डोंट वरी। आई नो आप अकेले, आपके सर, पीछे बहुत आई बड़ी नो। टीम है अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर अल्हम्दुलिल्लाह, बट फिर भी मैं बोल रही हूँ मतलब मैं अकेले कल को जाऊंगी, इतने हजार स्टूडेंट से ज्यादा मैं मतलब एक आऊंगी, बोलेंगे पता नहीं लड़की है कोई नॉर्मल आप जो है ना, स्टूडेंट, ये देखिए क्या क्या मैं होता है मालूम समझाऊंगी। है? देखिए आप समझिए बात को। जी दुनिया में सर। कोई भी काम जो है ना बहुत छोटा शुरू होता है, आहिस्ते आहिस्ते ग्रो करता जी सर जी है। एक ही सर जी बार में जो है सर ना हम सबको नहीं सेटिस्फाई कर सकते। आप जी एक जी स्टूडेंट, दो सर स्टूडेंट, जैसे हमने लिखा सिर्फ 5 स्टूडेंट की मदद कीजिए आप 2 महीने में। तो आप सब लोग जी अपना सर टारगेट बनाइए कि 5 लोगों की मदद करेंगे हम खुद। आपने वो 5 की मदद की ना, वो 5 आपको 50 तक पहुंचाएंगे इंशाल्लाह, डोंट वरी। जी So सर let's इंशाल्लाह। use these 2 months for helping out 5 families, 5 students, 5 friends, ये है ना? सर तो सब ये सर वो आप एक स्टेप, आप पहले दिन जो है ना अनाउंसमेंट मत करिए, डोंट थिंक जी, अबाउट इट। जी जी गजाला आपके लिए सर नहीं जी बोल रहा हूँ सर मैं, दिस जी, इज फॉर एवरीवन। स्टार्ट एग्जैक्टली। विथ वन एक्टिविटी। हाँ। जी। ये सर इन सब चीजों के बारे में, मतलब जो भी रीच आउट है, ये सब हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं एज ए कैंपस एम्बेसडर्स, आल्सो वी कैन डिस्कस। अभी फिलहाल लेट अस स्टिक टू ओनली इंटर्नशिप प्रोग्राम एंड रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है। ओके ओके देन सर। कैन आई हैव Shayan Rizvi? You can unmute yourself and अस्सलाम speak. वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं मलेशिया से बोल रहा हूँ और मैं एएमपी मलेशिया से 2020 की शुरुआत में जुड़ा था, जब यहाँ पे एक मीटिंग हुई थी दिल्ली में राइट्स के टाइम पे सीए एनआरसी के जरिए। और उस टाइम पे भी ये बात काफी ज्यादा उठाई गई थी कि हम लोग यहाँ फॉरेन कंट्रीज में बैठकर, अब्रॉड बैठकर, हमारे लिए हेल्प का जो स्कोप है वो काफी नैरो डाउन हो जाता है। इट रियली कम्स डाउन टू फाइनेंशियल एड। और यहाँ पे भी जो आपने जॉब स्कोप, द वर्क स्कोप की जो आपने बात करी है कि आपको एनजीओज को रीच आउट करना है, मस्जिदों को रीच आउट करना है अपने रीच बढ़ाने के लिए, यहाँ पे केस जो है थोड़ा बदल जाता है, क्योंकि यहाँ की चैरिटीज दे आर क्वाइट फोकस्ड ऑन द लोकल एनवायरनमेंट। मस्जिदें भी करंटली तो फॉरेनर्स के लिए खुली भी ही नहीं है बिकॉज ऑफ द कोविड क्राइसिस एटसेट्रा। तो आई वांटेड टू नो कि मैं whoever is going to be mentoring me, can the job scope be slightly changed to be targeting university students? क्योंकि यहाँ पे international students का बहुत बड़ा group है and each university tends to have this group of people who are from the same nation. So can we be targeting them instead? Sure. We have a set of defined roles for specifically those who are non-Indians.
NRIs के लिए, जो भी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए इंशाल्लाह, जैसे सोशल मीडिया प्रमोशन है आप वो हैंडल कर सकते हैं, रीच आउट थ्रू एनी सोशल मीडिया और रेजिंग द कॉज, मतलब बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज है जो आप एज एन इंटर्न कर सकते हैं। आमिर भाई कैन हम लोग उसको थोड़ा सा डिस्कस करके डिटेलिंग कर लेंगे। बहुत अच्छा पॉइंट है शायन। वी विल स्पेसिफिकली डू सम चेंजेस इन दोस जॉब रोल्स फॉर NRIs जो अभी यहाँ इंडिया में नहीं है, ऐसे स्टूडेंट्स के साथ, या जो वर्किंग प्रोफेशनल्स भी हैं, वी विल डू दैट। और अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव सम अदर एक्टिविटीज एज वेल, जहाँ पे आप जैसे इंटरेस्टेड लोगों को हम वी कैन यूटिलाइज इन दिस प्रोजेक्ट इटसेल्फ। So don't worry, we will come up with this inshallah. है ना? That's a good point. Jazakallah khair for the update. We'll be waiting for whatever the changes are in the job scope inshallah. For sure inshallah. Thank you so much. सर हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर है ना, मैंने आज लेट मीटिंग ज्वाइन की थी कुछ इश्यूज की वजह से, तो जो आमिर सर ने बताया वो हमें यानी जो एम्बेसडर्स दिया जाएगा वो बता देगा सर, जो डिटेल बताया आमिर सर ने वो। हाँ इंशाल्लाह हम कनेक्ट कर लेंगे, रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे। रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे। हाँ जी जी हाँ जी जी। लंबी बात, बहुत ज्यादा टाइम लेना नहीं है। आफरीदी मुश्ताक, कैन यू स्पीक? Assalamu alaikum, sir. My name is Afridi Mushtak. I'm a student of Aligarh Muslim University, and I'm from Kashmir. Sir, actually, what Ghazala was saying is that, sir, what I understood from that, she was saying that can we, held seminars in the colleges to spread the awareness about the AMP. As I have done several other internships before, I was intern with International United Model, I was intern with Next IAS, and I have conducted such programs in Kashmir before as well. I have bring some IAS personals here to deliver lectures about how to crack IAS. So, sir, can we hold seminars like that to make people aware about what actually AMP is and how you can get benefited out of this? Can we hold such seminars in the colleges? And Afridi साहब, we can 100% do that. तो more मतलब instead of promoting the organization, हम लोग directly जो है ना प्रोजेक्ट का जो है ना सेशंस कंडक्ट करने को तैयार हैं। आप हम लोगों को कॉलेजेस के साथ कनेक्ट करिए। We will do employability training program with them. We will do industry expert webinars with them, या ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों भी जाकर भी कर सकते हैं जहां पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है तो ऑनलाइन भी करेंगे। इनफैक्ट ये हमारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं, करियर काउंसलिंग की बात है, सीनियर इंडस्ट्री प्रोफेशनल से कनेक्ट होना, ये सब करेंगे। मतलब सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को प्रेजेंट करना मकसद नहीं है, मकसद ये है कि उन बच्चों के लिए जो है ना काम हो। So we are ready to do that. How we can help to those children who are in need? आफरीदी, आप कैंपस एम्बेसडर से कनेक्टेड हैं AMP के? नहीं सर, नहीं सर। You can join our campus ambassadors team and then दो चीजें हैं फुरकान भाई, मैं अगर थोड़ी सी डिटेल में आंसर कर दूं, दो चीजें हैं। एक तो आप जो है ना बच्चों की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं, है ना, बच्चों को आपके जो स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज हैं, सबको ही तकरीबन फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उसको कैसे सॉल्व करना। दूसरी आप बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लोगों को प्रेजेंट करना, तो मैं दोनों को अलग अलग आंसर करता हूँ। पहला आंसर ये है कि हम लोग जो है ना हमारी जो प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे जो दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं, एम्प्लॉयबिलिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम, स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम, दूसरे वेबिनार्स हैं, स्कॉलरशिप गाइडेंस प्रोग्राम, ये सारा कंडक्ट कर सकते हैं किसी भी कॉलेज के लिए। कोई एनी गिवन डे आप हम लोगों को कॉलेजेस से बात करें, ऑडियंस कौन रहने वाली वो बताएं, हम आपके लिए एक्सपर्ट लेक्चरर्स इंतजाम करेंगे जो इस पे हमारा रेगुलर चलता है, यानी बहुत रेगुलर चलता है। आप एमपी के हैंडल्स देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा क्या क्या प्रोग्राम्स चल रहे हैं। दैट इज वन। आईएएस आईपीएस को बुलाना है वो भी करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं। विदाउट गोइंग इनटू डिटेल, वी आर रेडी टू डू दैट, नंबर वन। नंबर टू, जहां फिनेंशियल प्रॉब्लम्स है ना, उनको आप खुद बताएं कि भाई इंडिया ज़कात पे ट्राई करें, कैसे ट्राई करें, उसकी ट्रेनिंग करना हो कि भाई हाउ टू रेज योर कॉज, how to promote your cause, we can surely conduct a special session for this, है ना। आप लोगों के लिए भी, जो लोग इंटर्नशिप में ज्वाइन करेंगे उनके लिए हम लोग 2 स्पेशल सेशन जो है ना रखने चाहिए। मैंने लिख के रखे थे पॉइंट्स फुरकान भाई, अम्मार भाई, फुरकान भाई, कि हाउ टू प्रेजेंट IZHC टू समवन, ये इनको ट्रेन करना चाहिए, एंड हाउ टू प्रमोट द कॉजेज एंड हाउ टू रेज कॉजेज। इस पे एक सेशन जो है ना पूरे तमाम इंटर्न्स को हम लोगों को अर्ली वीक में कर लेना चाहिए इंटर्नशिप शुरू करते वक्त, so that at least interns should they know about this entire process, फिर ये उनको बता सकते हैं। और अगर आप में से कोई भी इस तरह का वर्चुअल सेशन रखवाना चाहता है तो वी आर रेडी, वो तो पार्ट ऑफ दी योर जॉब रोल है जो आप बोल रहे हैं आफरीदी एंड गजाला बोथ, so that is the part of your job role, we are ready to do that any day any time। आप बताइएगा, थोड़ा सा एडवांस प्लानिंग कर लेंगे, so it will be easy for us to manage the things। I hope this is clear। उसके अलावा प्लस अगर आप स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज पर बात करना चाहते हैं तो हमारे पास बहुत सीनियर लोग हैं, शाकिब भाई जैसे। ये शाकिब भाई जो आपसे बात कर रहे थे,
He is from educational consultancy background, a very senior person in that industry, है ना, जिनके पास n number of options है. हमारे पास बहुत सारे experts ऐसे हैं जो इस तरह से सिर्फ गाइड करते हैं. हमारी एक स्पेशल टीम काम, रजाक भाई कॉल पर हैं, हमारी एक स्पेशल टीम है जो सिर्फ स्कॉलरशिप गाइडेंस पर काम करती है. So we have gathered so many experts and professional counselors जो लगातार इस बात पे गाइड करते हैं कि अवेलेबल स्कॉलरशिप स्कीम्स का फायदा कैसे उठाया जाए. तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं. हम लोगों को जो सिर्फ रुकावट और दिक्कत है कि कॉलेजेस के साथ बात करके सेशंस फाइनल कराना, क्योंकि हम सब लोग वॉलंटियर है, बहुत ज्यादा जो है ना कॉलेजेस जाकर बात नहीं कर सकते. सो विथ योर हेल्प वी विल स्टार्ट दिस. एक प्लस पॉइंट करता हूँ फुरकान भाई एंड सूफी मैडम, टुमारो आई विल एड मिस्टर तिरमिजी फ्रॉम AMP ऑफिस to your campus ambassadors group. He will start talking to, is there, mashallah. Yes. So he can start talking to these students and start finalizing sessions for these colleges. Okay, so we will, that will be separate activity, right? वो हो जाएगा. लेकिन again coming back to indiazakat.com, these 2 months are very dedicated towards these activities which we have listed down. इसको हम लोगों को आगे follow करना है इंशाल्लाह. Thank you. For sure. Thank you, sir. If there is no question, we can close the session, Amir bhai, because it's already. हाँ, पूछ लीजिए आप एक बार और किसी को. हाँ, अगर किसी को सवाल है, टीम में से किसी को कुछ बोलना हो, हमारी टीम में से अगर if somebody wants to say something. Yeah, Sufi ma'am, आपको कुछ ऐड करना है या Dr. Pinky? You were asking about the mentors, right, Dr. Pinky? Yes, sir. I had a question which I messaged you. Yeah. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. तो वो हम लोग बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं. हाँ, we can As discuss it is that. getting late. It's nearly 2 hours. We are in the meeting. Yes, Yeah. it's already late, so we can discuss Razak bhai, that. Shakib bhai and Ammar bhai, do you want to add something, last closing points? Yes. जी. Yes, sure. तो बहुत सारे इंटर्न्स के बहुत सारे सवाल है which can be categorized into कि हमें क्या करना है. And basically, as Amir bhai said, inshallah, मैं तो बोलूँगा by next week and we'll discuss this internally and inshallah publish it later on कि हमें एक internship causes कैसे रेज करना है और किस तरह से प्रमोट करना है. हमें अपने इंटर्न्स को ट्रेन करना है. मुझे फुरकान भाई को और उनके मेंटर्स को एंड ऑल ऑफ इट, और मैं भी अपने आप को मेंटर ही समझ रहा हूँ और मेंटर ही हूँ. इनफैक्ट मेंटर ही समझना क्या है. एंड हम लोग इंशाल्लाह विल बी ऑर्गेनाइजिंग दिस ट्रेनिंग इंशाल्लाह बिफोर द इंटर्नशिप स्टार्ट्स, ताकि हमारे जो इंटर्न्स हैं वो कॉन्फिडेंटली जाके बात, जैसे सिस्टर गजाला ने कहा कि मैं एक स्टूडेंट हूँ अकेले जाके, वो अकेले नहीं है, वो बिल्कुल भी नहीं है. और ये बात उनको हम अपने ट्रेनिंग के जरिए उनके अंदर रीइंफोर्स करेंगे ये आइडिया अपने हर इंटर्न के अंदर कि वो अकेले नहीं है. उनके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है. मेरा पर्सनली और मेरे जितने भी कॉलीग्स हैं, फुरकान भाई, शाकिब भाई माशाल्लाह इतने सीनियर प्रोफेशनल सॉरी, हम लोग के साथ में काम कर रहे हैं. और जिस तरह से एक्सपर्टीज ट्रेनिंग है हम लोग सब अवेलेबल हैं यहाँ पे. इंटर्न्स आप लोग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम आपके साथ खड़े हैं. हम बगैर आपकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग लिए या बगैर, बिल्कुल प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम हो रहा है. बिल्कुल ये मत सोचिए कि कोई एक शायद, जैसे आमिर भाई ने भी एग्जांपल बहुत सही दिया कि जैसे कोई बैंक में कोई लोग काम करने जाते हैं कि भाई रिसर्च करने के लिए, सेल्स के लिए आप ये करिए, या आप बहुत टैंजिबल प्रोडक्ट्स पे और सर्विसेज पे काम कर रहे हैं और भाई प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं. बिल्कुल उसी तरह से एक वर्क कल्चर में आपको इंट्रोड्यूस किया जाएगा और एक टैंजिबल KPIs और टारगेट्स के थ्रू असेस किया जाएगा इंशाल्लाह. और उससे सबसे पहले हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे आप लोगों को ट्रेन करके और आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट करके. एनी टाइम ऑफ द डे आप हमें व्हाट्सएप पे वगैरह पे मैसेजेस कर सकते हैं एंड इंशाल्लाह विल कम बैक. तो ये मेरे अभी के लिए क्लोजिंग पॉइंट्स है. बाकी इंशाल्लाह विल डिस्कस इंटरनली. कुछ डॉक्यूमेंट्स मैं भी आज रात इंशाल्लाह ताला प्रिपेयर करके ग्रुप में फॉरवर्ड करूंगा आमिर भाई, एंड देन वी कैन डिस्कस इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक. हम लोग ट्रेनिंग सेशंस ऑर्गेनाइज करते हैं इंशाल्लाह एंड लेट्स गेट इट रोलिंग इंशाल्लाह. बस ये मेरे तरफ से अभी के लिए क्लोजिंग. Wonderful closing point from a lead, mashallah. Amar bhai, inshallah, we really appreciate that comments from you, and we are always there, as you said, for everyone. हम पूरा हमारा सपोर्ट देंगे इन लोगों को इंशाल्लाह. Can I have the last question from Aisha Siddiqui, and then we can close. Assalamu alaikum.
My question is like what you have said that we can like ask students those who want our help. So what I was asking, can we ask housewives also, those who have dropped out their studies like from 12th or while completing their graduation, their family because of financial problem, their family have decided to let them marry and settle their life, and but now they want to continue their studies, but because of financial conditions they are not able to continue. So we can ask them, like we can introduce this platform to them or not. My question. मतलब आपका if I understood it correctly, आपका सवाल ये था कि अगर हम उनको सपोर्ट कर सके एजुकेशन हासिल करने के लिए, is that what your question is? हाँ यही पूछना था कि स्टूडेंट्स जो है रेगुलर स्टूडेंट्स, उनके अलावा हम लोग इनको भी मतलब इससे कुछ बता सकते हैं क्या? Is this related to specifically for internship or it's an outside question? देखिए मैं अब आंसर कर दूं इनको फुरकान भाई। जी बताइए। इंडिया ज़कात इज ओपन फॉर एवरीवन फॉर एनीथिंग। हमारे जो प्रोसेस और क्राइटेरिया है उसमें जो फिट बैठेगा उसके लिए भी आर ओपन है। हम जाकर एडमिशन नहीं दिला सकते किसी को, या हम जो है ना थ्रू इंडिया ज़कात वी आर नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ काउंसलिंग एज वेल। वो एएमपी का दूसरे प्रोजेक्ट्स का काम हो सकता है। सो इंडिया ज़कात इज ओपन, यू कैन रेज अ कॉज ऑफ फॉर लाइवलीहुड। किसी को कारोबार शुरू करना है उसके लिए, किसी रेगुलर स्टूडेंट का, किसी नॉन रेगुलर स्टूडेंट्स का, लेकिन उन्होंने एडमिशन नहीं लिया है, वी कैन नॉट रेज मनी फॉर देम। जिन्होंने एडमिशन लिया है, जिनको फीस भरनी है, कुछ भरने, वी नीड कॉन्क्रीट डॉक्यूमेंट्स, वी नीड कॉन्क्रीट स्टोरी, वी नीड कॉन्क्रीट पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स, वेरिफिकेशन। ये सब जिसके पास रहेगा उसका काम जो है ना, उसके लिए इंडिया ज़कात पे आप खुद आगे बढ़ के कर सकती हैं। अदरवाइज वो कॉसेज अप्रूव नहीं होते। कॉसेज अप्रूव होने का एक पूरा रूल एंड रेगुलेशन। फॉर एग्जांपल फॉर इंटरनेशनल एजुकेशन वी डोंट रेज कॉज ऑन indiazakat.com, है ना, तो ये रूल है इंडिया ज़कात का। तो इंडिया ज़कात के रूल में जो लोग फिट बैठेंगे उनके कॉजेज जो है वो अपलोड किए जाएंगे। आप एक बार इंडिया ज़कात पर जाकर समझ लीजिए कि कैसे चल रहा है वो पूरा प्लेटफॉर्म, राइट। रही बात ऐसे लोगों को एनकरेज करना, मोटिवेट करना, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। अभी फिलहाल वी डोंट हैव एनी प्रोजेक्ट ऑफ दैट सॉर्ट विद अस, है ना। हमारा सारा फोकस ज्यादातर ये है कि जो स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं हायर एजुकेशन में, उनकी स्कॉलरशिप के लिए, उनकी फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, उनकी मेंटोरशिप के लिए, उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए, उनके एम्प्लॉयबिलिटी ट्रेनिंग के लिए काम कैसे किया जाए, ये सारा काम हम लोग करते हैं राइट नाउ। सो आवर फोकस इज ओवर देयर। इट्स for everyone's update, I have shared my mobile number with you. जो यहाँ पर कैंपस एम्बेसडर से जुड़े हुए नहीं है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। We can join you as a campus ambassador inshallah. So can we close now, Amir bhai? Shall we? Yes sir. End it? Sir? Yes, Ghazala. सर आई हैव वन क्वेश्चन। जैसा कि मैंने बोला आपको कॉलेज में ऐसा होना चाहिए, दैट मीन्स अगर मैं कल को बोलूंगी कॉलेज में सबको ऐसा हो रहा है तो कल को मुझे कौन आएगा वहां पे, या मैं किससे बात करूं? मतलब कॉलेज में बात करके मतलब वो अवेयर हो जाएंगे, चलो ठीक है ऐसा हम कॉलेज में करेंगे, तो मुझे किससे बात करनी है जो फिर मेरा मतलब मुझे साथ देंगे? अभी इसके बाद तो आप सबसे पहले जो है ना फुरकान भाई से अलग से बात कर लीजिएगा। ही विल क्लियर ऑल योर डाउट्स। लेकिन अगर आप कॉलेज में कोई सेशंस ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो आप अपने टीचर से, एचओडी से, प्रिंसिपल से, टीपीओ से, किसी से भी बात करें, उनसे बात करें, उनसे हमारी टीम की बात कराएं। मैंने कहा तिरमिजी भाई हैं हमारे ऑफिस से, तिरमिजी साहब की बात कराएं। सूफी मैडम है, सूफी मैडम कैन टॉक, है ना, शी इज आवर वन ऑफ द लीडिंग लेडी। सो ऐसे हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जो ये खलील भाई हैं हमारे पास, सैयद खलील साहब, वेरी सीनियर प्रोफेसर who has got wonderful experience working India and abroad. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लगातार ऐसे इंस्टीट्यूट से कनेक्टेड रहते हैं। So you will find out resource person from our side, don't worry. आप पहले फुरकान भाई से समझ लीजिएगा अलग से इंशाल्लाह। जी सर इंशाल्लाह। Thank you. Sir, I have a question. Meanwhile, I have a question. Can I ask? Yes, Afridi. Sir, can we help the students, to get education from overseas universities, from abroad actually? No, we don't support. Okay, sir. Presently we don't support. हम दूसरा हमारे जो इंटरनेशनल एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे काउंसलर्स हैं। We can connect you with them. They can guide you on other available options. On India Zakat, we have stopped doing that. हमने शुरू में किया था, but now we have stopped doing that. Thank you, sir. लेकिन we will connect you with experts. अगर आपको इसके ऊपर सेशन रखाना है तो that also we can do.
Yes, sir. Actually, I want to hold a session on. हाँ, आप प्लान करिए, हम आपको राइट आदमी से, राइट लोगों से कनेक्ट कर देंगे. Afridi bhai, you can share my number. You can contact me, and we will suggest you. Thank you, sir. Okay, sir. Thank you, sir. All right, then. Thank you so much, everyone, for joining in. Inshallah, we will have a wonderful sessions with you as interns. Hopefully, we will have more such sessions, inshallah, where we can specifically talk on exact topics. With this, we are closing the session. Thank you so much. दुआ कर दीजिए. दुआ कर दीजिए. अच्छा, दुआ. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. अल्लाह इस इनिशिएटिव को कामयाब बना. अल्लाह यहाँ पर जितने भी मेंटर्स है या इंटर्न्स है, सबको इस प्रोजेक्ट के जरिए बहुत फलाई अता फरमा और उनको ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस हासिल करने की तौफीक अता फरमा. अल्लाह इस इनिशिएटिव के जरिए इंडिया ज़कात को एक बुलंदी पे पहुंचा और यहाँ ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करने की और ज्यादा से ज्यादा इस चीज को आगे बढ़ाने की तौफीक अता फरमा. अल्लाह जितने भी जरूरतमंद लोग हैं, सबकी जरूरत इस प्लेटफॉर्म के जरिए पूरा करने की हम सबको और अपने फजलो करम से इसको पूरा करने की तौफीक अता फरमा. इस काम में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, सबको इस्तिकामत के साथ पूरा करने की तौफीक अता फरमा और सबको हिम्मत और जज्बा अता फरमा. वाह खुदा व अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. रहमतिका या अरहमर राहिमीन.